ویلکم بیک ناظرین. اچھا جی, ہم بات کر رہے تھے جس طرح پاکستانی برانڈس پہ. اچھا, میرے خود یہ ایکسپیرینس رہا آن باہر کی, تو آپ کے پاکستانی کچھ برانڈز ایسے ہیں جو باہر چیزیں جس طرح ایکسپورٹ ہم کے حوالے سے ان کی کوالٹی اتنی بہترین ہوتی ہے کہ وہاں پر لوگ جو ہے وہ اس کو دھڑا دھڑ خرید رہے ہوتے ہیں. مطلب ہمارے ہاں یہ مسئلہ ہے کہ ہمارے ہاں کوالٹی معیار کے بھی جو ہے نا وہ بہت ساری چیزیں ہیں, اس میں آپ کیٹیگریز آ جاتی ہیں, جس میں 1 میں آپ کی ذرا اچھی کوالٹی, اس سے 2nd پہ ذرا ٹھیک ہے, پھر 3rd پہ تو مطلب آپ بالکل لو پہ چلے جاتے ہو, کیونکہ ہمارے ہاں یہ تھوڑا سا کوالٹی کی چیزوں کو بہتر کر دیا جائے کوالٹی کے حوالے سے. تو میرے خیال میں ہمیں باہر کی چیزیں جو ہے وہ خریدنے کی یا اس پر ہم ٹرسٹ کرنے کی ہمیں وہ شاید نہیں ضرورت پڑے گی. ہم کہتے ہیں باہر کی چیزیں ہیں نا یار اچھی ہوں گی, بہترین ہوں گی, اس لیے ہم زیادہ ہمارا جو ہے یقین ان چیزوں پہ آتا ہے. پھر ہم یہ کہتے ہیں چاہے جتنا مرضی ٹیکس لگ جائے وہ باہر کی چیز ہم پرچیز کریں. بالکل ایسے کھانے پینے کی چیزیں ہوں چاہے کوئی بھی چیز ہو, تو ہمارا بھروسہ میرے خیال میں شاید ان چیزوں پہ زیادہ ہے. کیونکہ اچھا ایون کہ کئی ایسی چیزیں ہیں جو پاکستانی برانڈ زیادہ اچھا آپ کو کوالٹی بھی دے رہا ہوتا ہے اور جو ہے آپ کے لیے کافی جو اکنامیکل بھی ہوتا ہے, لیکن پھر بھی ہمارا ایک کنسپٹ بن چکا ہے کہ ہم جو ہے اگر باہر کی چیز ہے, باہر سے آئی ہے تو ہم اس سے اچھی ہوگی, ظاہر سی بات ہے, اس کے اندر کوئی ملاوٹ نہیں ہوگی. سب سے بڑی بات یہی آ جاتی ہے ملاوٹ کی. ہاں, تو جب غیر معیاری چیزیں جو ہے وہ آپ خریدیں گے یا آپ اپنے استعمال میں لائیں گے تو وہ آپ کو نقصان ہی پہنچائیں گے. بالکل ایسے, اور ملاوٹ کا بھی میم ایکسپیرینس اور تجربے کے ساتھ پتہ چلتا ہے کہ ملاوٹ ہے کہ نہیں. جب آپ زیادہ استعمال کریں یا زیادہ یوز ٹو ہو جائیں تب پتہ چلتا ہے. ہم جیسے بچوں کو ابھی اتنا ایکسپیرینس ابھی آپ بچے ہیں تو پھر آپ بچے کچے ہیں, ایسے ہی ہے نا. اچھا جی, اور کسی یہ بھی ہے کہ اس کے ساتھ جو ہے بجلی کی قیمتوں میں بھی ہم نے یہ دیکھا کہ اضافے جو ہیں وہ اب تھے ہی تھے. پہلے ہم نے دیکھا کہ بہت سارے ٹیکسز اس میں بہت زیادہ ایڈ تھے, فلاں ٹیکس, ایک اضافی ٹیکس بھی جو ہے انہوں نے خالی جو ہے نا وہ کھانا اس پہ بھی لکھا ہوتا تھا اضافی ٹیکس, اور وہ نہیں پتا کون سا اضافی ٹیکس ہے, بہرحال وہ اضافی ٹیکس بھی آپ کا لگا ہوا ہوتا تھا. ابھی انہوں نے فکس ٹیکس جو ہے وہ لگانے کا تجویز بھی ہوئی. ابھی دیکھتے ہیں کہ اس کے اوپر جو ہے وہ کتنا عمل درآمد ہوتا ہے, اور ظاہر سی بات ہے ٹیکسز کی وجہ سے بہت زیادہ ہم لوگ پریشان بھی ہیں, کیونکہ آپ کی سیلریز میں بھی آپ ٹیکس ہیں, دیکھیں آپ سیلریز میں بھی آپ کے ٹیکس کٹے جائیں گے, اور ہر چیز جو ہے وہ آپ ٹیکس ادا کریں گے, اس کے بعد ہی آپ اس کو جو ہے اس کی طرف جائیں گے. ابھی اس حوالے سے بتائیے گا کیا صورتحال. دیکھیں میڈم, ہمارا ایک نظام آپ دیکھیں ٹیکس کا کہ ہدف ملتا ہے ایف بی آر کو. ایف بی آر نے کلیکٹ کرنا ہے ریونیو ٹیکس کی صورت میں عوام سے, تو اس میں آپ سب کو ٹیکس نیٹ میں لائیں. جتنے بھی نان فائلر لوگ ہیں انہیں آپ جو ہے فورسفلی یا جس طرح بھی آپ کر سکتے ہیں آپ فائلر کریں تاکہ آپ کا ٹیکس نیٹ بڑھ جائے. اور بڑے بڑے جو صنعت کار ہوتے ہیں, جو بڑے بڑے انڈسٹریلسٹ ہوتے ہیں یا بڑا بڑے جو مافیا اس ٹائم بن چکے ہیں, اگر آپ انہیں ٹیکس نیٹ میں لائیں گے تو میرا نہیں خیال کہ بھئی آپ کو پھر سیلریز پر ٹیکس لگانے کی ضرورت پڑے گی. پھر آپ جو ہے نیپرا یا وابڈا کو کہیں کہ آپ جو ہے بجلی کے اس میں جا کر انکم ٹیکس بھی جو ہے آپ دیکھیں گے ابھی بلوں میں انکم ٹیکس بھی جو نان فائلر لوگ ہوتے ہیں ان کے بلوں میں انکم ٹیکس بھی لگ کر آ رہا ہوتا ہے. تو اس طرح سے کئی ٹیکسز ایسے ہیں جو کہ ہمیں پتہ بھی نہیں ہوتا, ڈیلی لائف میں ہم وہ ادا کر رہے ہوتے ہیں. تو اس تمام تر سچویشن, اس صورتحال سے نکلنے کے لیے اگر تو ایف بی آر جو ہے اب ٹیکس نیٹ میں لانے کے جو اسٹریٹجیز پلان ہے اسے بہتر کرے تو شاید بجلی کے بلوں پہ, تنخواہ پر, یا پھر جو بھی کاسمیٹکس ہم خریدتے ہیں ان سب چیزوں پر شاید وہ ٹیکس جو ہدف ایف بی آر کو ملا تھا مگر کلیکٹ جو ہے دوسرے طریقے سے ہم سے کیا جا رہا ہے وہ شاید نہ ہو پائے. خیر, بات کر رہے ہیں نئے ٹیکس جو ہے فکس ٹیکس. فکس ٹیکس میم وہ یوں ہے کہ جو گھریلو صارفین ہیں ان کا اگر بل جو ہے 300 یونٹ چلے گا تو اس پر فکس ٹیکس جو ہے 200 روپے آئے گا. اگر 400 یونٹ آپ بجلی کنزمپشن کرتے ہیں تو آپ کا جو فکس ٹیکس ہے وہ 400 روپے لگ کر آئے گا. 500 یونٹ پہ آپ کا 600 روپے لگ کر آئے گا. 600 پر آپ کا 800 لگ کر آئے گا, اور 700 پہ آپ کا 1000, اور فردر جتنا آپ جائیں گے تو جو ٹیکس ہے وہ تقریباً 1000 سے جو ہے 1000 یا اسے تجاوز کر جائے گا. تو آپ دیکھیں کہ صرف بجلی کے بلوں میں اب
کئی دکاندار ایسے ہوتے ہیں جو کمرشل یونٹ آپ دیکھیں کہ اتنا اس ٹائم مہنگا ہو چکا ہے. 1 جون کو بجلی مہنگی ہوئی, 3 جون کو بجلی مہنگی ہوئی, پھر 6 جون کو بجلی مہنگی ہوئی, اس کے بعد عید سے پہلے بھی جو ہے ایگزیکٹلی مجھے ڈیٹ یاد نہیں, تب بھی جا کر بجلی مہنگی ہوئی, اور پھر 15 کو جو ہے تب بھی جا کر جو ہے بجلی مہنگی ہو رہی ہے. تو اس میں آپ دیکھیں کہ بھائی ایک مہینے میں آپ کبھی فیول پرائز ایڈجسٹمنٹ کی صورت میں بجلی بڑھا رہے ہیں, کبھی آپ یونٹ کا ریٹ بڑھا رہے ہیں, یا کبھی کوئی بھی ٹیکس ایڈ کر کے آپ ریٹ بڑھا رہے ہیں. تو ابھی جولائی اگست آیا نہیں ہے, لیکن اس سے پہلے جو ہے جولائی اگست میں فیول ایڈجسٹمنٹ کی صورت میں بجلی بڑھانے کا جو ہے انڈیا اب وہ نیپرا کی جانب سے دے دیا گیا ہے. تو اس تمام تر حالات میں آپ دیکھیں کہ لوگوں کا بل, ایکچوئل بل جو یونٹ وہ جو ہے اس کے ازمپشن کرتے ہیں, تو اس میں آپ دیکھیں کہ وہ ان کا بل تقریباً 9 سے 10 ہزار ہوتا ہے, لیکن ٹیکس لگا کر بل جو ہے 18-20 ہزار تک پہنچ جاتا ہے. اس میں خالی اگر دکانداروں کو ہٹا کر آپ عام صارفین کی بات کریں تو اکثرا جو مزدور طبقہ ہے, اب اس جو ہمارے بجٹ میں اس میں آپ دیکھیں ایک بہت بڑا مذاق ہوا ہے کہ 32,000 سے بڑھا کر سیلریز جو ہیں وہ 37,000 روپے کر دی گئی ہیں. 32 پہلے بھی نہیں مل رہی تھی. اگر 32 دینے لگ جائے ہمارے جتنے بھی بڑے بڑے صنعت کار ہیں ورکرز کو, تو میرے خیال میں شاید پھر بھی ان کا کچھ نہ کچھ گزارا ہو جائے. اب اگر حکومت نے 37 کیا تو ظاہر سی بات ہے آپ وہ دیں, لیکن اس چیز پر بھی امپلیمنٹ جو ہے نہیں ہوتا, جس کی وجہ سے ایک محدود آمدنی بات ہے نا کہ یہ آپ دیکھیں جہاں پہ بھی جائیں آپ کو 10,000 میں بھی لوگ کام کرتے ہوئے دکھائی دیں گے, آپ کو 12,000 18,000 کی سیلری پہ بھی کام کرتے ہوئے دکھائی دیں گے. لیکن ظاہر سی بات ہے کیونکہ ہمارے ملک میں اس ٹائم جس طرح کی صورتحال چل رہی ہے, چیلنجز بہت زیادہ ہیں, لوگ مجبور ہیں, کیونکہ ظاہر سی بات ہے کہ ہم مہنگائی کی بات کرتے ہیں تو جس طرح بجلی کے قیمتوں میں اضافہ کیا گیا ہے, گیس کی قیمتوں میں اضافہ کیا گیا ہے, پھر ہم آپ کی دیکھ رہے ہیں کہ آپ کے سیوریج کا بل ہے, آپ کا واسا کا بل آئے گا, مطلب آپ کی تمام چیزیں جو ہیں وہ آپ کا اتنا ڈبل خرچہ ہے. پھر آپ اپنے بچوں کی تعلیم پہ بھی کیا فوکس کریں گے یا ان کو تعلیم دلوائیں گے. تو یہ ہمارے لیے بڑا ایک چیلنج بن گیا ہے کہ یہاں پر لوگوں کے لیے مشکلات اور وسائل نہ ہونے کی وجہ سے لوگ جو ہیں وہ خودکشی کرنے پر بھی مجبور ہیں اس ٹائم. اچھا, آپ اپنے ساتھ تو جان اب کی وہ کر رہے ہوتے ہیں, وہ لوگ اپنے بچوں کی جانیں بھی لینے پہ اب مجبور ہو گئے ہیں نا. آپ کیا کریں جب حالات سے آپ انسان تنگ آتا ہے تو وہ سائیکولوجیکلی میں دیکھتی ہوں کہ لوگوں کے مسائل جو ہیں وہ بہت زیادہ بڑھ چکے ہیں. ایگزیکٹلی آپ دیکھیں تو کئی حادثات بڑھتے چلے جا رہے ہیں اس حوالے سے کہ ایک شخص نے, کسان نے, یا پھر ایک عام غریب آدمی نے اپنے بچوں کا گلا گھونٹ کے انہیں مار دیا, پھر خود جو ہے موت کی گھاٹ اتر گیا. تو اس طرح کے بہت سارے کیسز ہم ڈیلی نیوز میں ہم سنتے ہیں, اپنے ہیڈ لائنز جو ہمارا بلیٹن چلتا ہے اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ کئی ایسے حادثات ہو رہے ہیں. تو جس کی وجہ سے آپ دیکھیں کہ اصل میں بات یہ ہے کہ جو امیدیں لوگوں نے وابستہ کر لی تھی اس حکومت سے کہ حکومت جو ہے اس دفعہ ان کے پاس آپ دیکھیں چانس بھی لاسٹ ہے, کیونکہ اگر آپ اس دفعہ ڈیلیور نہیں کریں گے تو عوام شاید آپ کو دوبارہ کبھی مینڈیٹ نہ دے. اور اچھا ایک اور بھی مسئلہ آپ دیکھیں نا جو اس ٹائم ہمارا اس تمام سچویشن میں بنا ہوا ہے, وہ ایک مکس حکومت ہے. جب مکس حکومت ہوتی ہے آپ کو پتا ہے ہر پارٹی کو اپنے ہی مفاد, اپنے ہی نیم پلیٹ سے کام کرنے کی جو ہے عادت پڑی ہوئی ہے. تو ہر کوئی چاہتا ہے کہ ہم جو ہے یہ کام کریں تاکہ ہم آگے عوام کے سامنے جو ہے ہیرو بنے, آگے ہمارے لیے کافی فائدہ ہو ووٹ لینے میں اور تمام تر صورتحال میں. تو اس صورتحال میں سب سے زیادہ نقصان میڈم غریب آدمی کا ہو رہا ہے. اور اس وقت جو ہے غریب آدمی جس کی حد مار اگر ہم دیکھیں تو جو ایک انکم منتھلی ہے وہ 25 سے 30 ہزار روپے ہے, اور اس پر کم از کم اس کا بل 15,000 روپے ہے, 7-8 ہزار روپے اس کا کرایہ ہوگا اگر کرایہ کا گھر ہے, اور اس کے بعد آپ دیکھیں بچوں کی اسکول کی فیس ہو گئی, کھانے پینے کا راشن ہو گیا. مشکل ایک اس ٹائم ہم دور سے گزر رہے ہیں. ایک کالر ہے ہمارے ساتھ. السلام علیکم. جی کون بات کر رہے ہیں؟ وعلیکم السلام. جی کون بات کر رہے ہیں؟ میں ملتان سے بات کر رہا ہوں, محمد فاروق. جی کیا کہنا چاہیں گے؟ یہ بجلی کے بلوں کے جو اتنا حکومت نے بجلی کے بلوں میں ریٹ بڑھا دیا ہے. اینکر صاحب بیٹھے ہیں اور عباس صاحب بہت اچھی اینکرنگ کر رہے ہیں اور بہت اچھی یعنی کہ رپورٹنگ بھی کر رہے ہیں. اللہ ان کو مزید ترقی دے. لیکن ایک عام آدمی اور ایک غریب بندہ کیا کرے گا جس کے گھر میں ایک پمپ ہے, ایک فریج ہے؟ ٹھیک ہے, آپ کچھ کہنا چاہ رہے ہیں یا کچھ سوال پوچھنا چاہ رہے ہیں؟ حکومت کو چاہیے کم از کم, شہباز شریف نے, مریم نواز صاحبہ نے کہا تھا کہ 300 یونٹ فری دیں گے. اب وہ 300 یونٹ تو ہوا میں گل ہو گئے ہیں. بالکل جی, بہت شکریہ کال کرنے کا. اچھا ظاہر سی بات ہے وہ جو ایک نعرہ لگایا گیا تھا نا الیکشنز میں کہ ہم جو اتنی بجلی جو ہے وہ 200 یونٹ اگر استعمال کریں گے تو ہم ان کو فری دیں گے,
300 यूनिट अगर वो इस्तेमाल करेंगे तो उनको फ्री होगी बिजली, लेकिन हमें अभी वो चीज़ें जो है वो दावे वहीं के वहीं नज़र आ रहे हैं, कोई उसके ऊपर अमल दरामद नहीं हो सके। इस पे और क्या कहेंगे आप? जिस तरह से अभी जो हमारे कॉलर ने हमें कहा कि उन्हें भी देखें उम्मीद थी 300 यूनिट मिलेंगे, जाहिर सी बात हमें तो पता है प्रैक्टिकली तो पॉसिबल भी नहीं है ये। आप देखें, आप मकरूज हैं IMF के, जब आप IMF की शराइत जब इम्प्लीमेंट करेंगे आपके पावर सेक्टर पे, आपके जो है पेट्रोलियम सेक्टर पे, हर सेक्टर पर आप जो है रेट ऊपर नीचे बगैर IMF की इजाजत नहीं कर सकते, तो किस तरह से आप जो है 300 यूनिट फराम करेंगे? तो यही जो है उम्मीदें जब लोगों को दे दी जाती हैं, सबसे बड़ा नुकसान इमोशनली लोगों का मैडम यहाँ पर होता है। आप देखिए, एक गरीब आदमी जो इलेक्शन से पहले टीवी चलाकर बैठे और उसे पता है यार मेरे बहुत मसाइल है, मैं बिजली का बिल अदा नहीं कर पा रहा, मेरे जो सामने है ये रोड्स के इशू हैं, मेरे ये सफाई का निज़ाम बहुत जो है ख़राब है, और कई ऐसे मसाइल हैं, पीने का साफ पानी, फिल्ट्रेशन प्लांट मौजूद नहीं है। जब वो टीवी पर बैठा देख रहा होता है कि भाई अपना जो वादे दावे हो रहे होते हैं, एक आस, एक उम्मीद जो है वाबस्ता कर लेते हैं इन सियासतदानों के लिए, और फिर जब ये इक़्तिदार में आते हैं तो जाहिर सी बात है, आप देखिए कि इस टाइम हमारे जितने भी इस टाइम आप रोही में आप देखें प्रोग्राम्स हो रहे हैं जिसमें आखिर क्यों हो रहा है, बनाम सरकार हो रहा है, न्यूज़ नाइट, सारे प्रोग्राम सारे इस टाइम जो है मसाइल पर चल रहे हैं, और उन मसाइल पर चल रहे हैं स्पेशली जो वादे दावे हुकूमत करके आई थी, और उसके बाद जो है अब लोग इतने जो है आप देखें इमोशनली इस टाइम जो है लोग परेशान है। जाहिर सी बात है कि तमाम ये हमारे जो जितने भी सोशल इश्यूज हैं, ये हमारी इस टाइम जो है वो जरूरत भी बन गए हैं कि उनके ऊपर आवाज उठाई जाए। इस पर मजीद बात करते हैं। नाज़रीन, अभी हमने जाना है ब्रेक पे, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन, और इसके साथ ही जिस तरीके से मौसम की बात कर रहे थे, हम चलते हैं अपने सेगमेंट की तरफ, टुडेज वेदर। हसन मलिक हमारे साथ मौजूद हैं। हसन से जानते हैं आज दिन भर मौसम कैसा रहेगा, क्या सूरत हाल है? जी आसमा, मुल्तान शहर और गिरदोनवा की अगर आज के मौसम की बात करें तो आज मुल्तान शहर का मतला सुबह सवेरे से बिल्कुल साफ दिखाई दे रहा है। जहाँ एक जानिब मतला साफ है तो वहीं दूसरी जानिब सुबह सवेरे से ही गर्मी की शिद्दत महसूस की जा रही है। सुबह सवेरे दर्जा हरारत इस तरह से महसूस किया जा रहा है जिस तरह से दोपहर के औकात में होते हैं, और आज तो मुल्तान शहर की सुबह इस तरह से हुई है जिस तरह से डायरेक्टली सुबह सवेरे ना हुई हो बल्कि डायरेक्टली ही दोपहर हो गई हो। इस तरह से गर्मी की शिद्दत महसूस की जा रही है, हबसदा माहौल है, हवा ना चलने के बराबर है, और ये भी मजीद कहा जा रहा है कि दोपहर के औकात में लू चलने के इम्कानात जाहिर किए जा रहे हैं और गर्मी की शिद्दत में नुमाया इजाफा देखने के इम्कानात जाहिर किए जा रहे हैं। आज अगर शहर के कम से कम दर्जा हरारत की बात की जाए तो आज मुल्तान शहर का कम से कम दर्जा हरारत 30 डिग्री सेंटीग्रेड पर रिकॉर्ड किया गया है। ज्यादा से ज्यादा दर्जा हरारत आज शहर और गिरदोनवा का 42 से 43 डिग्री सेंटीग्रेड तक जाने के इम्कानात जाहिर किए जा रहे हैं। हवा में नमी के तनासुब को देखा जाए तो रोजाना की बुनियाद पर शहर में हवा में नमी का तनासुब भी कम होता हुआ दिखाई दे रहा है, जो कि आज 45% तक रिकॉर्ड किया गया। एयर क्वालिटी इंडेक्स की बात की जाए तो आज मुल्तान शहर का एयर क्वालिटी इंडेक्स कदरे बेहतर है, जो कि 80 पॉइंट्स पर रिकॉर्ड किया गया है। पाकिस्तान के फिजाई आलूदा तरीन शहरों की लिस्ट में मुल्तान की बात की जाए तो आसमा आज मुल्तान 6ठे नंबर पर स्टैंड कर रहा है। जहां एक जानिब गर्मी की शिद्दत में नुमाया हद तक इजाफा देखने को आ रहा है तो वहीं दूसरी जानिब डॉक्टर्स की जानिब से शहर-ए-औलिया के बासियों के लिए ये हिदायत जारी की जा रही हैं कि शहरियों को चाहिए कि वो लाइट कलर के कपड़े पहने, टाइट कपड़े पहनने से गुरेज करें, डार्क कपड़े पहनने से गुरेज करें, और बार बार ये कहा जा रहा है कि शॉवर के इस्तेमाल को यकीनी बनाएं। बुजुर्ग अफराद और बच्चे जो हैं वो डायरेक्टली बाहर निकलने से परहेज करें। अगर निकलना ज़रूरी भी है तो पैदल चलने वाले अफराद जितने भी हैं उन्हें चाहिए कि वो अम्ब्रेला यानी छतरी के इस्तेमाल को यकीनी बनाएं, और जो मोटरसाइकिल पर सफ़र करने वाले हजरात हैं उन्हें चाहिए कि अपने सरों को किसी कपड़े से या किसी चीज़ से ढांप कर ज़रूर घरों से बाहर निकलें। आइंदा 24 घंटों के हवाले से बात की जाए तो आसमा आइंदा 24 घंटों के दौरान मुल्तान शहर का मतला शदीद गर्म रहने का इम्कान है। मौसम बिल्कुल साफ रहेगा और गर्मी की शिद्दत में नुमाया हद तक इजाफा देखने के इम्कानात जाहिर किए जा रहे हैं। जी बहुत शुक्रिया हसन मलिक आपका। और इसके साथ ही जिस तरीके से हम बात कर रहे थे इस टाइम महंगाई के हवाले से, वहीं पर हम ये बात भी करेंगे कि ज़िला कौंसिल और कॉरपोरेशन के हवाले से जो है जो इस टाइम रूट्स हैं, मुहर्रम रूट्स हैं, अच्छा फिर से बहुत गलती है लिखने में, उसके हवाले से अपडेट करिएगा। मैडम, क्योंकि अब हर साल हम देखते हैं बकरा ईद के बाद जब मुहर्रम करीब आता है तो जितने भी इमाम बारगाह, मजालिस और जलूस के जो रूट्स होते हैं तो उनके हवाले से अगर हम देखें तो कहीं ना कोई काम जो है वो उखड़ा हुआ होता है। कहीं पैच वर्क की ज़रूरत होती है, कहीं बाउंड्री वॉल बनाने की ज़रूरत होती है,
कहीं स्ट्रीट लाइट्स प्रोवाइड करने की ज़रूरत होती है। तो उस तमाम सूरत हाल में ज़िला कौंसल की हदूद में जितने भी जो इमाम बारगाह जिनके इर्द गिर्द जो है पैच वर्क की बहुत ज़रूरत थी, तो उसमें तकरीबन 19 इमाम बारगाह के काम के लिए जो है ज़िला कौंसल की जानिब से जो है टेंडर जारी किया गया। तो उसमें जो है इंडस्ट्रियल स्टेट, जलालपुर पीरवाला, कासिम बेला, मखदूम रशीद और जितने भी मुल्तान शहर की ज़िला कौंसल की हदूद है, तो उसमें 19 इमाम बारगाह जो हैं उसके अंदर उनमें जो है काम जो है उसके टेंडर्स किए गए। और उसके अलावा अगर हम कारपोरेशन के हवाले से बात करें तो कारपोरेशन शहर मुल्तान शहर के अंदर आप देखें अंदरून में बहुत सारे इमाम बारगाह हैं। उसके अलावा जो है सूरज मियानी के करीब बहुत इमाम बारगाह और जितने भी इमाम बारगाह जो हमारे यूनियन काउंसिल्स में आते हैं कारपोरेशन के हदूद में, तो वहाँ पर जो है तकरीबन 36 काम का जो है वह उन्हें टेंडर दिया। और स्ट्रीट लाइट्स के हवाले से भी है कि जो लाइट का डिपार्टमेंट होता है हमारे कारपोरेशन में भी और जिला काउंसिल में भी, तो उन्हें ये टास्क मिला कि कहीं पर अगर तो पोल खड़ा है तो वहाँ पर आप जो अगर स्ट्रीट लाइट फाल नहीं है तो आप उसे फाल कर दें। अगर कहीं पर हमारी जो स्ट्रीट पोल लाइट की जो पोल है वो मौजूद नहीं है तो आप फिर मुहर्रम के करीब जब जो है मजालिस 5 या 6 मुहर्रम को हम देखते हैं कि जुलूस जो है रात के वक्त निकलना शुरू होते हैं, तो वहाँ पर जो है मोबाइल लाइट्स और जो है फ्लेक्सिबल जो लाइट्स हैं वहाँ पर इंस्टॉल की जाती हैं ताकि जितने भी वहाँ पर अज़ादार आते हैं मजालिस में, जुलूस में शिरकत करते हैं मजलिस में, तो वो जो है उन्हें किसी मसले का सामना ना हो। तकरीबन जिला कौंसिल के जो काम है ये तकरीबन इनकी कोई ओवरऑल अगर हम टोटल ग्रैंड टोटल उसकी बात करें तो तकरीबन कोई 1.25 करोड़ तक जो काम ने यहाँ पर जिला कौंसिल ने दिए और तकरीबन 1.25 करोड़ तक जो कारपोरेशन की जानिब से दिए गए। मगर एक छोटा सा इसमें इशू ये आ रहा था कारपोरेशन का कि काम जो है वो हो जाते हैं, ठेकेदार कर देते हैं, लेकिन उनमें जो फंड्स जो हैं वो जारी नहीं किए जाते। गुज़िश्ता 2 साल से कारपोरेशन का ये मसला चल रहा है। हमारी जो ज़िलाई इंतज़ामिया है जिसमें हमारी कमिश्नर मुल्तान साहिबा इस वक्त भी हैं, तो उनने भी मुहर्रम रूट के कामों के लिए फंड्स जारी नहीं किए कारपोरेशन को। और कारपोरेशन पहले भी जो है इस वक्त कई जो ठेकेदार हैं तकरीबन डेली बेसिस पे वहाँ पर बैठ के धरना कर रहे होते हैं, एहतजाज कर रहे होते हैं कि हमारे जो पिछले फंड्स हैं, हमारी सिक्योरिटीज़ हैं, वो वापस करें, फिर ही हम जाके आगे वाले काम जो है कर सकते हैं। मगर ये भी बड़े मसाइल चलते हैं कि जो हमारे इदारे होते हैं वो आप देखें कि शायद हमारे इदारे अब इतने कोई पावरफुल नहीं रहे, या फिर हम कहें कि शायद इतने उनके इख्तियारात नहीं है कि आप काम ले रहे हैं आवाम से, आप काम करवा रहे हैं, लेकिन उसके बाद आप जो है पैसे देने की बारी आती है तो आप कहते हैं कि भाई हमें फंड्स नहीं मिल रहे, हम कोशिश कर रहे हैं। तो इस हवाले से भी बड़े मसाइल चल रहे हैं हमारा रोड से। अच्छा, इसके साथ ही फिर सरकारी मुलाजमीन के हवाले से भी बात कर लेते हैं कि हुकूमती इकदाम जो किए जा रहे हैं उन पर एहतजाज भी जारी है, इस हवाले से बताइएगा कि उनका क्या कहना है। मुल्तान शहर में कई यूनियंस ऐसी हैं जो कि ग्रेड 4 के मुलाजमीन हैं जो तकरीबन 16 या 17 स्केल तक जाते हैं। तो वो जो हैं इस वक्त उनकी जो यूनियंस होती हैं, क्लर्क यूनियंस हो गई, एफका यूनियंस हो गई, कई यूनियंस जो हो गई, तो ईद से पहले भी ये लोग जो है पार्लियामेंट हाउस इस्लामाबाद गए और इनने एहतजाज किया। और उसके बाद जो है जब बजट आया तो बजट में भी जो है इनने यही जो है एहतजाज का दायरा वसी करने का जो है इंदिया दिया था। तो अब ईद जिस तरह से गुजर गई और अब दोबारा जो है एहतजाज शुरू हो चुका है हर डिस्ट्रिक्ट के अंदर, और इनका यही है कि हम पार्लियामेंट हाउस, वजीर आज़म हाउस के बाहर जाके बैठ के भूख हड़ताल करेंगे, धरने देंगे, क्योंकि इनकी जो तनख्वाहों में एक तो इस बजट में टैक्स लग चुका है और इसके अलावा जो इनकी ग्रेजुएटी का एक मसला चल रहा था, जितने भी हमारे मुलाजमीन जो रिटायर हो जाते हैं तो उनकी जो पेंशन है वो बेसिक पे पर उन्हें हुकूमत ने देने का जो है फैसला किया था। अच्छा, इस पे बात करते हैं। कॉलर है हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम। ओहो, कॉल ड्रॉप हो गई। अच्छा, तो गवर्नमेंट ने उन्हें बेसिक पे पर पेंशन देने का जो है फैसला किया था। तो जो ये फैसला था उसके मुताबिक अगर कोई शख्स रिटायरमेंट से पहले उसकी तनख्वाह 1 लाख थी तो उसकी जो बेसिक होगी हाउस रेंट और तमाम दीगर जो है फैसिलिटीज और जो भी गवर्नमेंट देती है उसके अलावा जो उसकी बेसिक तकरीबन 50,000 बन जाएगी। तो उस 50,000 के अकॉर्डिंग जो है वो आगे पेंशन वसूल करेगा। ये जो गवर्नमेंट का एक नोटिफिकेशन आया था उसके बाद से ग्रेजुएटी के मसले जो है काफी उनके बढ़ते चले गए और कई मुलाजमीन जो है इस हवाले से एहतजाज उन्होंने किया। और उसके बाद जो है पे स्केल के हवाले से उनके बड़े मसाइल चले और उसके बाद जो है उनकी कई ऐसे मसाइल थे जिसमें जो है उनके तकरीबन 2008 से लेकर अब तक जो है उनका हाउस रेंट अगर 2300 रुपए तब था, अब भी उनका हाउस रेंट जो है 2300 रुपए। पेट्रोल का अगर उन्हें तब के रेट के हिसाब से पैसे मिल रहे थे
अब भी उन्हें उसी पेट्रोल के रेट के हिसाब से पैसे मिल रहे हैं, जबकि आप तब देखें पेट्रोल तकरीबन 60-70 रुपए लीटर होगा और अब देखें आप तकरीबन 300 रुपए लीटर पेट्रोल है। और अब इस टाइम तकरीबन आप देखें 2,500 का कोई घर तो आपको मिलना नामुमकिन सी ही बात है। तो इस हवाले से भी बड़े मसाइल जो हैं ये जो हमारे जितने भी हमारे सरकारी मुलाजमीन हैं उनके हैं, और वो भी हमेशा जो है हम देखते हैं कि अक्सर सरापा एहतजाज रहते हैं और मसाइल जो है उनके बढ़ते हैं, तो वो अक्सर कलम छोड़ हड़ताल जब करते हैं उसका ड्रॉबैक, उसका जो सबसे बड़ा जो इशू फेस करती है हमारी आवाम करती है कि कई काम जो है रुक जाते हैं, लोग जो है पहले भी चक्कर लगा के इदारों के थक जाते हैं। पिछले दिनों हॉस्पिटल के हवाले से हम बात करें कि नर्सेस थी, उन्होंने एहतजाज किया, फिर डॉक्टर्स ने भी किया, तो उसमें आवाम ही सफ़र कर रही होती है। अच्छा, उसमें फिर काफ़ी बच्चों की डेथ भी हो गई। तो ये इस हवाले से बड़ा ये चीज़ होती है कि हुकूमत को जो है इन चीज़ों पे, अच्छा वो काफ़ी देर वो फिर ये था कि काफ़ी टाइम गुजर गया था, उसके ऊपर हुकूमत कोई भी नोटिस नहीं ले रही थी। हालांकि ये हमारी इस तरह के इदारे जो होते हैं, चाहे हॉस्पिटल्स हों, इसमें तो फौरन इमरजेंसी की ज़रूरत होती है, कई जानें जो हैं वो दाव पे लग जाती हैं। तो इस हवाले से बड़ा इस चीज़ को वो होता है ना कि हुकूमत की तरफ से कुछ इस तरह के इक़दाम किए जाएं कि तमाम लोगों के लिए कई आसानियाँ हो सकें, जो कि हम देखते हैं कि कहीं पे भी नहीं है। अच्छा, कल की ही रिपोर्ट मैं देख रही थी कि हमारी जिस तरह से हम बात करते हैं कि हमारी नौजवान नस्ल जो है वो यहाँ से मूव कर रही है, अब उसकी शरह जो है वो मजीद बढ़ रही है कि यहाँ से लोग बहुत तेजी से यहाँ से मूव कर रहे हैं। आप देखें कि तकरीबन कोरोना के बाद 2021 में, 2022 में, 2023 में हर साल तकरीबन 10 से 15% इजाफा होता है इसमें। 2022 की अगर हम बात करें तो उसमें तकरीबन जो है 6,40,000 अप्रोक्सीमेटली 6.5 लाख जो है लोग मुल्क छोड़कर, अपना वतन छोड़कर जो है बाहर रोजी की तलाश में, बेहतर एजुकेशन की तलाश में जो है वहाँ पाकिस्तान से मूव कर गए। तो आप देखिए कितना हमारा टैलेंट जो हमारे जितने नौजवान जो हैं जब मुल्क छोड़ेंगे, जो सासा है हमारे मुल्क का, तो जाहिर सी बात है काफी जो है उन्हें बिल्कुल ऐसे ही नुकसान ही होता है अपने मुल्क का। इसमें मजीद बात करेंगे नाज़रीन, अभी हमने जाना ब्रेक पे, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन, और इसके साथ ही जी हम वफाकी और सूबाई मुहतसिब इदारे के हवाले से भी बात करेंगे, जिस तरीके से वो लोगों के मसाइल हल कर रहे हैं इस टाइम, उनकी कारकर्दगी के हवाले से क्या कहना चाहेंगे ऑन? मैडम, अगर वफाकी और सूबाई मुहतसिब के हवाले से बात करें तो उसमें हम देख रहे हैं कि बाशमुल हर साल जो है तकरीबन 20 to 30% उनके केसेस में इजाफा होता है, जिसकी ये वजह सबसे ज़्यादा सामने आती है कि लोग जो है उन्हें हमारे सरकारी और सूबाई इदारों से बहुत ज़्यादा शिकायत होती हैं, जो अभी मसला जो वो हल करवाना चाह रहे होते हैं या जो भी उनके मसाइल वहाँ पर सॉल्व नहीं हो रहे होते तो वो जाकर फिर दरख्वास्त देते हैं वफाकी और सूबाई मुहतसिब में। तो अगर हम बात करें तकरीबन अप्रॉक्सीमेटली केसेस के हवाले से, तो तकरीबन 2022 में यहाँ पर वफाकी मुहतसिब में 4,500 केसेस थे। 2023 में जो केसेस थे वो तकरीबन जो है 6,500 तक पहुंच गए, और अब तकरीबन जुलाई करीब है तो जुलाई तक जो है 5,000 केसेस जो है अब तक हमारे वफाकी मुहतसिब में आ चुके हैं। तो उस हवाले से अगर हम रेशियो देखें तकरीबन इस साल भी जो है एक्सपेक्टेडली 8,500 या 9,000 तक केसेस जाने का जो है प्रोडिक्शन है। तो उस हवाले से आप देखें कि जिस तरह से अभी हम तनख्वाहों के हवाले से बात कर रहे थे, कई मसाइल ऐसे बात कर रहे थे, तो जिस तरह से हाँ, इसमें एक चीज़ होती है कि कोई शहरी जो है अगर उसे मसला है सरकारी इदारों से तो वो जाके सिर्फ दरख्वास्त वफाकी या सूबाई मुहतसिब दे सकते हैं, और जो खवातीन है उनके लिए जो है एक अलग विंग बनाया जाता है स्पेशली खवातीन मुहतसिब का, कि वहाँ पर जो हमारी खवातीन जिन्हें विरासत में, जायदाद में हिस्सा नहीं मिलता, तो वो जाके स्पेशली अपनी जो है कंप्लेंट वहाँ रजिस्टर्ड करवाती हैं, या जिन्हें जो ऑफिस में जो है सरकारी हो या प्राइवेट कोई भी ऑफिस हो वहाँ कोई हरासमेंट या कोई इस तरह का कोई जो है उन्हें मसाइल हो, तो वो जाके वहाँ अपनी कंप्लेंट्स रजिस्टर्ड करवाती हैं, और वहाँ पर जो है उनकी कंप्लेन हल करने की जो रेशो है वो बहुत ज़्यादा है। तकरीबन ऑलमोस्ट ऑल केसेस जितने भी वहाँ रिपोर्ट होते हैं तो रैपिडली, क्योंकि इतने ज़्यादा केसेस नहीं आते, तो वो बहुत तेज़ी से जो है वहाँ पर खवातीन के मसाइल जो है हल किए जाते हैं, उनके मसाइल सुने जाते हैं। तो वो खवातीन के लिए एक बहुत बड़ा जो है वहाँ आप देखें तो एक इदारा एक जो उन्हें बेनिफिट दे सकता है। तो खवातीन जितनी भी हैं, कोई भी खुदा ना खास्ता आपको मसाइल है, अगर आपको जायदाद में हिस्सा नहीं मिल रहा, आपके जो विरासती जायदाद है, या आपको कोई हरासमेंट के मसाइल हैं, या कोई भी ऐसे मसाइल हैं जो आप समझती हैं कि सरकारी इदारे या सूबाई इदारों से भी हमें कोई मसला है और वो हमें वहाँ हल नहीं हो रहा, तो वो जाके वहाँ करवा लेते हैं।
अब जो सरकारी मुलाजमीन खुद होते हैं वो यहाँ पर ड्यूरिंग देयर सर्विस वो अपने ही इदारे के खिलाफ कोई कंप्लेंट रजिस्टर्ड नहीं करवा सकते। सही है। और इसके अलावा जो है वफाकी और सूबाई मुतसिब में आप किसी डिफेंस या हमारे आर्म फोर्सेस के जितने इदारे हैं उनके खिलाफ कोई कंप्लेंट रजिस्टर नहीं करवा सकते। अगर हमारे कोई भी हाई कोर्ट डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का ऑर्डर है तो उसके खिलाफ अगर उसका मतलब वहां से जो है रिजेक्ट हो चुकी है कोई चीज तो फिर आप आके यहाँ दोबारा चैलेंज नहीं कर सकते। ये कुछ जो है SOPs होती हैं। तो लेकिन बहरहाल आप देखें जो मसाइल अवाम को होते हैं, लोगों को होते हैं, तो वो जाके यहाँ पर अपने केसेस रजिस्टर करवाते हैं और 60 दिन के अंदर ही टाइम है हमारे इस दोनों वफाकी सूबाई मुतसिब के इदारों के पास कि वो उनका केस सॉल्व करें। 14 दिन के अंदर अंदर समाअत होना शुरू हो जाती है। और जो यहाँ पर तकरीबन आप देखें कि केसेस हल करने की जो रेशो है वो अप्रॉक्सीमेटली 85% तक है। और तकरीबन कुछ केसेस होते हैं वो शायद कुछ लंबे हो जाते हैं। और इसके अलावा भी अक्सर हम केसेस इस तरह के भी देखते हैं कि लोग जो है इंश्योरेंस करवा लेते हैं और फिर उसके बाद जब वो इस दुनिया से कूच कर जाते हैं तो कंपनीज जो हैं वो उनके लवाकिन को इंश्योरेंस का जो एक क्लेम है देते हुए कई मसाइल क्रिएट करते हैं। तो इसके लिए इंश्योरेंस मुतसिब है। अगर बैंक के हवाले से आपको कोई मसाइल हैं तो इसके लिए बैंकिंग मुतसिब है। तो इस तरह हवाले से जितने भी थोड़ी सी इस हवाले से आवाम को जो है एजुकेट करने की ज़रूरत है कि जो हमारे सरकारी इदारे जो हैं उनके ऊपर भी हमारे सरकारी इदारे मौजूद हैं। हमारी बेशक आप सरकारी ना हो, प्राइवेट कोई आपको इदारा आपकी बात ना सुन रहा हो तो आप वहां जाकर जो है अपने शिकायत लेके पहुंचे और वहां जाके आपको इंशाल्लाह इंसाफ मिल सकता है। अच्छा, ये इस हवाले से तो हम देखते हैं कि मोस्टली जिस तरह से आए दिन जो है हमारे पास इस तरह के गेस्ट भी, उनके डायरेक्टर भी मौजूद होते हैं। अच्छा, उनसे जब ये बात हो रही होती है ना तो वो कहते हैं मोस्टली जो हमारे पास आते हैं वो बिजली के जो है वो केसेस, उनमें हम देखते हैं कि उनमें उनके बिलों से रिलेटेड काफी लोग कंप्लेंट बिजली और सुई गैस। क्योंकि आप मैडम देखें कि जिस तरह से इस दफा सुई गैस के जो नरखों में इजाफा हुआ तो उसके बाद लोगों के 15-15, 20-20 हजार सर्दियों में बिल आना आम बात हो चुकी थी। लोगों ने अपने कनेक्शन कटवा के LPG की तरफ और गरीब लोग जो है वो लकड़ियां से चूल्हा जो है जलाकर अपना गुजारा करने लगे। अच्छा, अभी आप देखेंगी कि जो आपका बिल आएगा इस दफा जुलाई का वो आप उठा लीजिएगा और पिछला जून का उठा लीजिएगा और मई का उठा लीजिएगा अगर आपके पास मौजूद हो तो उसमें आप देखेंगे कि जो रीडिंग डेट है उसमें 100% 1 से 2 दिन का जो है गैप जरूर आया हुआ होगा। अगर गैप ना भी हो तो वो क्या कहते हैं वो ड्यूरेशन वही रखेंगे और जो आपकी तस्वीर है मीटर रीडिंग की वो इतनी ब्लर करके दे देंगे कि आपको पता भी नहीं चलेगा कि इतने मीटर ही चले हुए हैं इस दिन या इससे ज्यादा चले हुए हैं। तो ये एक जो हमारे स्पेशली ये वापडा का इदारा जो एक गेम करते हैं लास्ट टाइम ना, और मैंने ना क्योंकि जाहिर सी बात है जितनी आप क्योंकि इस पे आए रोज जो है बातें हो भी रही होती हैं और मैं कहती हूँ हमारा ये समझ लें कि ये जो बिजली के बिल है इस टाइम हॉट इशू है। अच्छा, इस पे हर आया बंदा जो है वो अपनी राय का इजहार कर रहा होता है और अपने बिलों के हवाले से भी। तो मैंने खुद अपने बिल भी चेक किए तो एक में क्योंकि 2 मीटर घर के लगे हुए तो उसमें दोनों जो बिल थे एक में बिल्कुल क्लियर पिक थी कि जिसमें आपकी रीडिंग जो है वो वाजिया हो रही थी कि कितने यूनिट्स जो हैं वो आपके इस्तेमाल हो चुके हैं और कितने नहीं। और इसी तरीके से जो है मेरा जो दूसरा बिल था वो बिल्कुल उसकी जो पिक्चर थी वो बिल्कुल ब्लर थी। तो मतलब वहां मुझे फील ही नहीं हो रहा था कि अब वो बिल मेरा जो जिस पे ब्लर था उसके जो यूनिट थे उसके हवाले से देखा जाए तो मेरा बिल बहुत ज्यादा था और एक मेरे जो मीटर है उसका जो बिल आया हुआ था वो बहुत कम था। अच्छा, वो भी कि जहाँ पे क्लियर था वहां पे बिल कम था, जहाँ पे ब्लर था वहां पे बिल आपकी यूनिट। अब हमें नहीं पता कि उसमें कितना इजाफा किया गया और उसके साथ जो है वो बिल अटैच कर दिया गया। तो जाहिर सी बात है वो बिल भरना फिर हमारी मजबूरी तो है, वो उसमें हम कोई कर तो नहीं सकते। अच्छा, जहाँ पर की बिलों की बातें हो रही हैं वहाँ चलते हैं अपने सेगमेंट की तरफ। आज के भाव हमारे साथ बिलाल यूनुस मौजूद हैं। बिलाल से जानते हैं कि आज मार्केट में सब्जियों फलों के क्या रेट्स हैं। जी बिल्कुल, सब्जियों और फलों की कीमतों में उतार चढ़ाव का सिलसिला जारी है। सरकारी रेट लिस्ट में कीमतें कम या ज़्यादा होने के बावजूद भी जो है वो मार्केट में कीमतें आसमान से बातें करती दिखाई देती हैं। दुकानदारों ने मनमानी के रेट मुकर्रर किए हुए हैं। कीमतों की बात करते हैं तो थाईलैंड अदरक का सरकारी रेट जो है वो 570 रुपये मुकर्रर किया गया है जबकि मार्केट में 650 रुपये प्रति किलो के हिसाब से फरोख्त किया जा रहा है। इसी तरह लहसुन का सरकारी रेट जो है वो 250 रुपये मुकर्रर है जबकि मार्केट में तकरीबन 380 रुपये प्रति किलो के हिसाब से फरोख्त किया जा रहा है। इसी तरह लीमू का सरकारी रेट भी जो है वो 270 रुपये मुकर्रर है जबकि मार्केट में 500 रुपये प्रति किलो के हिसाब से फरोख्त किया जा रहा है। हर सब्जी में इस्तेमाल होने वाले हरी मिर्च, टमाटर और प्याज की कीमतें तो सरकारी रेट लिस्ट के मुताबिक कम होती हैं जबकि मार्केट में कीमतें जो है वो काफ़ी ज़्यादा देखी जा रही हैं। प्याज का सरकारी रेट 92 रुपये मुकर्रर है जबकि मार्केट में
160 रुपये फी किलो के हिसाब से फरोख्त किया जा रहा है। इसी तरह टमाटर का सरकारी रेट 80 रुपये मुकर्रर किया गया, जबकि मार्केट में 140 रुपये फी किलो के हिसाब से फरोख्त किया जा रहा है। हरी मिर्च का सरकारी रेट भी 90 रुपये मुकर्रर है, मार्केट में तकरीबन 150 रुपये फी किलो के हिसाब से फरोख्त की जा रही है। दीगर सब्जियों की बात की जाए जिसमें अरबी शिमला मिर्च का सरकारी रेट तो कम है, जबकि अरबी मार्केट में इस वक्त 180 रुपये, जबकि शिमला मिर्च 140 रुपये फी किलो के हिसाब से फरोख्त की जा रही है। दीगर सब्जियों की बात की जाए जिसमें सब्ज धनिया का सरकारी रेट फी किलो के हिसाब से 110 है, मार्केट में 180 रुपये फी किलो के हिसाब से फरोख्त किया जा रहा है। टिंडे का सरकारी रेट 74 रुपये मुकर्रर किया गया है, मार्केट में 140 रुपये फी किलो के हिसाब से फरोख्त किया जा रहा है। इसी तरह और दीगर सब्जियों में जो है वो करेला और देसी तोरी का सरकारी रेट तो 40 रुपये मुकर्रर है, मार्केट में तकरीबन 100 रुपये फी किलो के हिसाब से फरोख्त किए जा रहे हैं। फलों की बात की जाए तो फलों में जो है वो मौसमी फल भी जो है वो गरीब आदमी की पहुंच से खासे दूर हैं। लीची का सरकारी रेट तो 280 रुपये मुकर्रर है, मार्केट में तकरीबन 380 रुपये फी किलो के हिसाब से फरोख्त की जा रही है। जामुन का सरकारी रेट 190 रुपये मुकर्रर किया गया है, मार्केट में तकरीबन 300 रुपये फी किलो के हिसाब से फरोख्त किया जा रहा है। इसी तरह और दीगर फलों में जो है वो लोकाट का सरकारी रेट तो 120 है, मार्केट में 200 रुपये फी किलो के हिसाब से दस्तयाब है। दीगर फलों की बात की जाए जिसमें जो है वो सेब और आम का सरकारी रेट तो इकसाम के हिसाब से अलग अलग हैं। आम की बात की जाए तो आम का सरकारी रेट 140 से लेकर 250 रुपये मुकर्रर किया गया है, जबकि मार्केट में आम इस वक्त 140 रुपये से लेकर तकरीबन 350 रुपये फी किलो के हिसाब से फरोख्त किया जा रहा है। इसी तरह पपीते का सरकारी रेट 210 रुपये है, मार्केट में 300 रुपये फी किलो के हिसाब से फरोख्त किया जा रहा है। चीकू का सरकारी रेट 180 रुपये है, मार्केट में तकरीबन जो है वो 250 रुपये फी किलो के हिसाब से फरोख्त किया जा रहा है। कोई एक ऐसी सब्ज़ी और फल नहीं जो सरकारी रेट के हिसाब से मार्केट में फ़रोख्त की जा रही हो। सब्ज़ी और फलों की कीमतों में नाजायज़ मुनाफाखोरी होने की वजह से शहरी काफ़ी ज़्यादा परेशान है और इंतज़ामिया से भी यही मुतालबा करते हैं कि लिहाजा सब्ज़ी और फलों की कीमतों से खुद साख्ता महंगाई की लहर को ख़त्म किया जाए ताकि गरीब आदमी से भी सब्ज़ी और फल खरीद कर सके। जी बहुत शुक्रिया बिलाल यूनुस साहब का, और इसके साथ ही ऑन आपका भी शुक्रिया, आप हमारे साथ रहे और बहुत सारे इश्यूज जिन पे हम हमेशा बात करते रहते हैं और हमारा यही होता है कि हमने अपने इश्यूज जो हैं वो हुक्मरानों तक पहुंचाने होते हैं ताकि हम एक आम बंदे की आवाज़ पहुंच सके। और मेरे ख्याल में और अपने प्रोग्राम के जरिए भी यही एक्टिविटी जो है इनकी रहती है। ऐसे अक्सर जब प्रोग्राम कहते हैं तो लोग यही कहते हैं क्या इस पे कोई इम्प्लीमेंटेशन भी होगी। हम कहते हैं हो या ना हो, हमारा काम है वो, हमारा काम है आवाज़ उठाना। हमारा काम यही है कि जो ये आगे तकरीरें कर रहे होते हैं उनका सिर्फ बरक्स आवाम से ही। बिल्कुल, और बहुत शुक्रिया आपका। और इसके साथ ही नाजरीन अभी हमने ब्रेक पे जाना है, हमारे साथ रहिएगा। जब हम ब्रेक से वापस आएंगे तो हमारे साथ कुछ और गेस्ट मौजूद होंगे। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ बिल्कुल ठीक ठाक होंगे और दुआ करते हैं आज का दिन आपका बहुत ही अच्छा गुजरे, हंसते हुए मुस्कुराते हुए खैर व आफियत के साथ गुजरे। इसी के साथ हमारे साथ आज जो गेस्ट मौजूद हैं उनकी तरफ बढ़ते हैं। जी आज हमारे साथ हैं डॉक्टर शफीक अहमद साहब जो कि साइकेट्रिस्ट हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? वेलकम करते अपने शो। और इसके साथ ही जो हमारे साथ दूसरे गेस्ट मौजूद हैं, जी आप उनको जानते हैं पहचानते हैं, आए हमारे साथ अक्सर शो में भी मौजूद होते हैं। जी ज़हूर धरेजा साहब हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? साइकी दानिश्वर हैं और हमेशा जब भी हमारे शो में आते हैं सूबे के हवाले से जो है इनकी जो एक कोशिश है वो हमेशा जारी रहती है, उस पर आवाज़ बुलंद करते रहते हैं। यहाँ पर हमारे जितने भी मसाइल हैं उनको उजागर करने में, आवाज़ बुलंद करने में इनकी बहुत कोशिशें शामिल हैं। अच्छा जी, आज जो हम बात करने जा रहे हैं, आज हम डॉक्टर साहब से बात करेंगे दिमागी सेहत के हवाले से। आपको पता है कि इस टाइम हमारे साइकोलॉजिकल इश्यूज जो हैं वो बहुत ज़्यादा बढ़ते जा रहे हैं। अच्छा, जहनी सुकून और आप अपने कहते हैं ना इसकी सेहत का, दिमाग की सेहत का ख्याल कैसे रख सकते हैं, क्या क्या थेरेपीज़ हैं, ये हम डॉक्टर साहब से जानेंगे। और इसके साथ ही धरेजा साहब से जो है वो हम अपने सूबे के हवाले से बात करेंगे। इस टाइम सेक्रेटरीट के हवाले से भी बात होगी। सबसे पहले डॉक्टर साहब, हम जिस तरह से दिमागी सेहत की बात करते हैं, वैसे तो ओवरऑल सेहत जो है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, लेकिन वो कहते हैं ना दिमागी जो सुकून है, आपका जो सेहत है, उसका हम ख्याल कैसे रख सकते हैं? देखिए, पहले तो हमें इस चीज़ को समझना होगा कि अगर हम सेहत की बात करते हैं तो मेंटल हेल्थ के बगैर कोई फिजिकल हेल्थ नहीं है। हाँ। अगर हम WHO की डेफिनेशन की भी बात करें तो वो भी डेफिनेशन यही है कि हेल्थ इज़ ए डायनामिक प्रोसेस ऑफ कंप्लीट फिजिकल,
mental, social and spiritual well-being. And not merely the absence of the disease or the infirmity. یہ نہیں ہے کہ ایک بندے کو کوئی سائیکولوجیکل کوئی فزیکل پرابلم نہیں ہے تو وہ ہیلتھ والی اسٹیٹ میں، ٹھیک ہے نا. اس کا ہم خیال کر سکتے ہیں ڈیفرنٹ ڈائمینشنس کو ذہن میں رکھتے ہوئے کہ ہم نے جو ہیلدی ہماری ایکٹیویٹیز ہیں ان کو ہم نے آپٹ کرنا ہے. وہ اگر ہم سٹارٹ کریں اپنی اس بایولوجیکل جو ہماری نیڈز ہیں جن میں ہماری سلیپ ہے، ایپیٹائٹ ہے، ان چیزوں سے اگر ہم شروع کریں تو میرا خیال ہے کافی ساری چیزیں ہماری بہتر ہو سکتی ہیں. ہمارا جو اٹھنے اور جاگنے کی جو روٹین ہے ہم پہلے اس کو ڈسٹرب کر دیتے ہوتے ہیں، جس سے ہماری اگر نیند پوری نہیں ہوتی تو ہمارے سارے بایولوجیکل فنکشن اور الٹیمیٹلی ڈسٹرب ہونا شروع ہو جاتے ہیں. اگر میں یہ کہوں کہ جتنے بھی سائیکیٹرک یا سائیکولوجیکل ایشوز ہیں ان میں 80 to 90% سلیپ پہلے ڈسٹرب ہوتی ہے یا اس کے کنسیکوینسز میں ہوتی ہے، تو شاید یہ غلط نہیں ہوگا. ہم نے اپنی جو بیسک نیڈز ہے ان کا خیال کرنا ہے. دوسرا اس کے ساتھ ساتھ یہ ہے کہ ہم کہتے ہیں ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے، ہم اپنے لیے ٹائم نہیں نکالتے، ٹھیک ہے نا. تو اپنے لیے ٹائم نکالنا بہت ضروری ہے. اپنی فزیکل ہیلتھ کے ساتھ ساتھ مینٹل ہیلتھ کا خیال کرنا بہت زیادہ ضروری ہے. اس کے لیے آپ ڈیلی کوئی ایکٹیویٹی کر سکتے ہیں، کوئی ایکسرسائز کر سکتے ہیں، کوئی واک کر سکتے ہیں، کوئی یوگا کر سکتے ہیں. اور اس کے ساتھ ساتھ دوسرا پرابلم یہ آ رہا ہے جیسے جیسے ہمارا میڈیا ایڈوانس ہو رہا ہے، ہماری لائف آگے جا رہی ہے، تو ہمارے ایک دوسرے کے ساتھ جو رابطہ ہے، کنیکٹیوٹی ہے، وہ ختم ہوتی جا رہی ہے. ایک ہی روم میں آپ ایگزامپل دیں، کہیں پہ لوگ بیٹھے ہیں 4-5 فیملی ممبرس ہی کیوں نہیں بیٹھے ہوئے، تو 2 منٹ 4 منٹ کی گفتگو کے بعد ہمارا الٹیمیٹلی یہی ہوتا ہے کہ ہم نے موبائل دیکھا. اور ہم اس طرح کے ایڈکشن ہمارے اندر آ گئی ہے کہ ہم صبح اٹھتے ہی پہلا کام سب سے پہلا یہی کام کرتے ہیں. اچھا، یہ واقعی حقیقت ہے. مطلب آپ اگر نیند کے بعد اٹھے ہیں تو سب سے پہلے تو یار اچھا کسی کا میسج آیا ہوگا یا کسی کی کال ہے. اگر آپ نے موبائل سائلنٹ پہ کر کے سوئے ہوئے ہیں تو پھر ظاہر سی بات ہے وہ فوراً سے بندے کا جو دماغ ہے وہ اسی طرف. اچھا ہم سم ٹائم جب گیدرنگ میں بھی بیٹھے ہوں تو یہی ہوتا ہے کہ آپ کا دماغ جو ہے وہ باتیں تو آپ کر رہے ہوتے ہیں پر کہیں نہ کہیں آپ کے دماغ میں یہ چیز ہوتی ہے کہ یار آپ نے موبائل چیک کرنا ہے. بالکل. تو اس وجہ سے بھی ہم بہت زیادہ ایک دماغ میں جو ہے نا وہ برے طریقے سے اس گیجٹ کی وجہ سے پھنس گئے ہیں. بالکل. اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی دیکھیں نا، اگر ہمارے ساتھ کوئی ایشو آتا ہے ہم یہ تو بات کریں گے کہ یار ہمیں کوئی بلڈ پریشر کی ایشو آ رہا ہے، ہمیں کوئی ڈائبٹیز ہو رہی ہے، ہمیں کوئی اور مسئلہ فزیکل النس کا آ رہا ہے، لیکن اگر ہمیں کوئی مینٹل ڈسٹربنسز ہو رہی ہیں، سائیکولوجیکل ڈسٹربنسز ہو رہی ہیں تو اس میں ہم بات ہی نہیں کرتے، نہ کر سکتے ہیں. جی بعض جگہوں پہ ہم کرنا بھی چاہتے ہیں تو نہیں کر سکتے. یہ اس صورت میں ہی ساری چیزیں بہتر ہو سکیں گی جیسے ہم ڈیبیٹ کرتے ہیں، مینشن کرتے ہیں کہ باقی بھی جو بیماری ہیں، جسمانی بیماریاں، ان کا ایک پراپر کوئی تشخیص ہوتی ہے، پراپر علاج ہوتا ہے. جب تک ہم اس لیول پہ آ کے نہیں پہنچیں گے کہ ہم ان پہ بیٹھ کے بات کر سکیں، اوپنلی بات کر سکیں، ایکسپریس کر سکیں، تو تب تک یہ ہماری مینٹل ہیلتھ کمپرومائز رہے گی. اچھا، یہ ایکسپریس کرنا بھی بہت کم لوگ ایکسپریس کر پاتے ہیں. مطلب بہت زیادہ لوگ جو ہے وہ ذرا اس حوالے سے بھی، اب جیسے ہمارے ہاں ٹرسٹ ایشوز بھی بہت زیادہ ہے جس کی وجہ سے جو ہے وہ لوگ اپنی بات جو ہے وہ دوسرے تک کنوے نہیں کر سکتے. اس کی جو میں سمجھتا ہوں سب سے بڑی وجہ اسٹگما ہے. ہم نے ایک ٹیبو بنا لیا ہے کہ مینٹل ایشوز جو ہیں وہ پتہ نہیں ہم کسی کو بتائیں گے تو کیا کہیں گے. اور اگر ہم اسٹگما کی بات کریں تو اس حد تک ہے کہ صرف اس بندے کے پارٹیکولر انڈیویجول کے ساتھ نہیں ہے جو اس مینٹل النس میں سفر کر رہا ہے، بلکہ اس کی پوری فیملی کے ساتھ ہے. وہ اگر فیملی کو بتاتا ہے تو فیملی والے کہتے ہیں کہ یار ہم کس کو بتائیں گے کہ ہمارے بچے کے، ہمارے بیٹے، ہمارے بیٹی میں یہ مسئلہ آ گیا، ہم کس کو ایکسپریس کریں، ہم رشتہ داروں کو کیا جواب دیں گے. ہم بیسیکلی ویلیڈیٹ کروانا چاہ رہے ہوتے ہیں جو ہم سے تھوڑا سا اپر سوشل کلاس کے ہوتے ہیں کہ یار یہ مسئلہ ہوتا بھی ہے کہ نہیں ہوتا. ہم کہتے ہیں کہ لوگ کیا کہیں گے، اگر لوگوں کو پتہ چل گیا تو کیا کہیں گے، لوگوں کا امپریشن کیا ہوگا. ہمیں اپنی مینٹل ہیلتھ پہ کمپرومائز کر لیتے ہیں اس اسٹگما سے بچنے کے. اچھا، اور یہ اتنا ہی آپ کی جو ہے وہ آپ کو تباہ کرتا ہے، نقصان پہنچاتا ہے. بالکل. اس میں کوئی نہیں. دیکھیں ہر چیز کا ایک ڈیوریشن ہوتا ہے. اگر سائیکولوجیکل ڈسٹربنسز کسی بندے کو، انڈیویجول کو ہیں، اگر وہ ٹائملی آئیڈینٹیفائی ہو جاتی ہیں تو اس کی ڈیفینیٹلی جو سیویرٹی کا ایلیمنٹ ہے وہ بھی کم ہوگا، اس کا جو ٹریٹمنٹ ریسپانس ہے وہ بھی اچھا آئے گا اور اس کی کوالٹی آف لائف جلدی امپروو ہونا شروع ہو جائے گی. بالکل. اگر یہ چیزیں ہم ڈیلے کر دیتے ہیں تو ڈیفینیٹلی اس کی جو سیویرٹی وہ بڑھ جاتی ہوتی ہے. پھر اس کے بعد پھر آپ کو ملٹیپل آپشنز پہ دیکھنا پڑے گا. تو مثال کے طور پہ اگر کسی کو انیشیل کو سٹریسز ہیں، کسی کو مائنر قسم کا انگزائٹی ہو رہا ہے یا اس کو کبھی کبھی ایپیسوڈ آتے ہیں ڈپریسو سمپٹمس کے، اگر انیشیلی ہم اس کو ڈائگنوز کر دیا تو ہم کہیں گے بھائی آپ اپنا سوشل نیٹ ورک بڑھا لیں، لوگوں سے ملنا جلنا بہتر کر لیں، ریلیجیس ایکٹیویٹی کر لیں، کسی سے کوئی ہیلپ سیک کر لیں، کوئی اپنی جو روٹین ہے لائف کی اس کے اندر پازیٹیوٹی لے آئیں. وہ چیزیں تو بہتر کر دیں گی اس کی جو انیشیل پریزنٹیشن. بٹ ایک دفعہ وہ ماڈریٹ ٹو سیویئر اس کی سیویرٹی اگر ہوگی کسی بھی النس کی تو پھر اس کو میڈیسنس پہ آنا پڑے گا.
और फिर मेडिसिन से भी बंदा वो और ज़्यादा ही इस चीज़ में जो है वो धंसता चला जाता है। अच्छा जी, मजीद भी आपसे इस हवाले से बात करते हैं। ज़हूर साहब से बात करेंगे। इस टाइम मरकजी और सूबाई बजट में जो है वो सेब को जो हिस्सा दिया गया है उस हवाले से क्या कहना चाहेंगे आप? बहुत मेहरबानी। सबसे पहले मैं रोगी का शुक्रगुजार हाँ वसीयत का जिन्हें के शुरू तो मरकजी बजट सूबाई बजट में वसीयत को नजरअंदाज किया मैंने ये अभी भी पूरी तरीके से नजरअंदाज और खास तौर से हम तो समझे अच्छा, थोड़ा जो टेक्निकल प्रॉब्लम आता है माइक के वालों की बात जो है ना डिस्कस कर रहे हैं। डॉक्टर साहब आपसे बात करते हैं। इस टाइम जिस तरह से मेंटल हेल्थ की हम बात कर रहे हैं, अच्छा अभी हमारे यहाँ जिस तरह से आप क्या समझते हैं, क्योंकि आपके पास भी बहुत सारे ऐसे पेशेंट आते होंगे, सबसे ज्यादा आप क्या इशू देखते हैं? सबसे मेन प्रॉब्लम तो वही स्टिग्मेटाइजेशन है, मार्जिनलाइजेशन है, डिस्क्रिमिनेशन है। उसके बाद फिर उसको डिफरेंट स्ट्रेस का एलिमेंट आ जाता है, एंग्जाइटी टॉप पे है, फिर उसके बाद डिप्रेशन बहुत ज़्यादा कॉमन है, बिलखसूस फीमेल में, फीमेल जेंडर में ये बहुत ज़्यादा कॉमन है। उसके बाद फिर वो जो साइकोटिक एलिमेंट्स होते हैं, अगर हम सिंपल बात करें कि जो साइकेट्रिक इश्यूज होते हैं वो बुनियादी तौर पे दो तरह के होते हैं। एक को कहा जाता है साइकोटिक, एक को कहा जाता है न्यूरोसिस। न्यूरोसिस का मतलब ये होता है कि पार्टिकुलर इंडिविजुअल या पेशेंट के अंदर इनसाइट होती है, उसको इस चीज़ का एहसास होता है मेरे साथ प्रॉब्लम क्या है, इस प्रॉब्लम का बाजुकत उसको सोल्यूशन का पता होता है, बाज़ को नहीं पता होता है। लेकिन जो साइकोसिस वाले पेशेंट्स होते हैं उनके अंदर बेसिकली जो इनसाइट होती है वो लैक करती है, उनको अंदाजा नहीं होता हमारे साथ प्रॉब्लम है क्या। तो मोस्ट कॉमनली जो चीज़ें साइकेट्रिक इश्यूज या साइकोलॉजिकल डिस्टर्बेंसेस में कॉमन है वो न्यूरोसिस से ज़्यादा है, जिनमें एंग्जाइटी है, डिप्रेशन है, स्ट्रेस है, इस तरह की चीज़ें। उसके बाद फिर दूसरे नंबर पे ये हमारे साइकोसिस रहते हैं जिनमें स्किज़ोफ्रेनिया है, बाइपोलर अफेक्टिव डिसऑर्डर है, डिल्यूजनल डिसऑर्डर है, इस तरह की बीमारियां ज़्यादा कॉमन है। अच्छा सर, बहुत सारे लोग जो है डिप्रेशन और एंजाइटी को उसमें फ़र्क नहीं कर पाते, इसमें आप क्या देखते हैं, डिप्रेशन और एंजाइटी में क्या फ़र्क है? अगर मैं लेमैन उसमें बात करूं तो एंग्जाइटी और डिप्रेशन में कोई ज़्यादा वो नहीं है, फ़र्क नहीं है। थोड़ा सा फ़र्क ये है कि एंग्जाइटी वो होती है कि आप एप्रीहेंड कर रहे होते हैं। मिसाल के तौर पे कोई एक स्टूडेंट है, उसका प्रॉफ है, उसका कोई प्रोफेशनल एग्जामिनेशन है, उसका सेमेस्टर है, उससे पहले उसकी जो सिम्टोमेटोलॉजी होगी, जो अलामात होंगी, मिसाल के तौर पे उसके दिल की धड़कन बेतरतीब होगी, उसका गला खुश्क होगा, उसमें ट्रैमर होंगे, इस तरह की अगर अलामात उसमें अंदर आ रही हैं कि एक चीज़ अभी हुई नहीं है इंसिडेंट, लेकिन वो फिर भी एंक्शियस फील कर रहा है, एप्रीहेंडेड है, तो ये वाली जो अलामात होती हैं ये एंग्जाइटी दिलाती है। सही। बट अगर वही स्टूडेंट अपने सेमेस्टर में नाकाम हो जाता है, फेल हो जाता है, लॉस हो जाता है किसी दिन का, उस वक्त उसकी जो कैफियत होगी, उस वक्त उसको जो गिल्ट फीलिंग से फॉर एग्जाम्पल अगर होती है, कोई सैडनेस होती है, कोई वीपिंग स्पेल्स होगी, तो वो वाली जो अलामत कहलाएंगी दैट ही और शी इज सफरिंग फ्रॉम। और हमारे यहाँ डिप्रेशन जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है। अच्छा, मैं कुछ लोग जो है वो एक तो अपने फाइनेंशियल हम देखते हैं उसकी वजह से बहुत ज़्यादा उसमें आ जाते हैं कि फाइनेंशियल क्राइसिस में हैं, कुछ इस तरह का जहनी दबाव ले लेते हैं। अच्छा, फिर हमारे यहाँ जो है वो बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज इतना किया जाता है कि लोग जो है वो अपने ऊपर बहुत ज़्यादा वो चीज़ें हावी करना शुरू कर देते हैं, इसके वजह से जहनी तनाव और इस तरह का जो है वो बहुत ज़्यादा शिकार हो जाते हैं। बिल्कुल सही कहती हैं। अगर हम इसकी थोड़ी सी साइंटिफिकली बात करें तो उसके लिए हम फॉलो करते हैं बायोसाइकोसोशल मॉडल को। बायोसाइकोसोशल मॉडल ये कहता है कि एक इंडिविजुअल है, एक पर्सन है, उसको उसके अंदर जेनेटिक प्रीडिस्पोजिशन है। जेनेटिक प्रीडिस्पोजिशन का मतलब ये है कि उसके खानदान के अंदर इस तरह की पहले डिप्रेशन की अलामात रही हैं। उसके साथ साथ डेफिनेटली अगर एक पेरेंट्स के अंदर या फैमिली के अंदर डिप्रेशन की अलामात हो तो बच्चे की जो ग्रूमिंग है, ग्रोथ है, वो प्रॉपरली उसकी नहीं हो पाती। उसके साथ साथ अगर उसकी पैटर्नल उसके कोई कन्फ्लिक्ट्स हो जाते हैं, जो सेपरेशन हो जाती है, कोई इस तरह के इश्यूज हो जाते हैं, तो उसका जो अर्ली चाइल्ड होता है वो बड़ा डिफिकल्ट हो जाता है। ये सारी चीज़ें उसकी एक शख्सियत बना रही होती है, पर्सनैलिटी डेवलप हो रही थी कि आगे आने वाले हालात में उसने डिफरेंट सिचुएशंस का किस तरह से मुकाबला करना है, किस तरह से कोप करना है। ये सारी चीज़ें मिलके फिर क्या करती हैं कि आपकी जो वल्नरेबिलिटी होती है टूवर्ड्स डेवलपमेंट ऑफ डिप्रेशन और साइकोलॉजिकल डिस्टर्बेंसेस वो बढ़ जाती हैं। उसके बाद ज़िंदगी में डेफिनेटली क्राइसिस आते हैं, कोई ट्रॉमा आता है, कोई इस तरह का इवेंट आता है, तो फिर उसके अंदर बायोलॉजिकल अल्ट्रेशन होती है, कीमियाई मादे होते हैं जिन्हें न्यूरोट्रांसमीटर का नाम दिया जाता है, तो उसकी वजह से फिर जब उनकी अल्ट्रेशन होती है तो डिप्रेसिव सिम्टोमेटोलॉजी आती है। और डिप्रेशन को कहने को तो बहुत आसान है, लेकिन इसकी जो एगनी होती है ये वो वाला बंदा जो इसमें मुब्तला है उसको पता होता है कि वो किस सिचुएशन से गुजरा होता है। उसके अंदर बाज़ वक़्त गिल्ट फीलिंग आ जाती है
पछतावा होता है, पछतावा होता है। पछतावा होता है, बहुत ज्यादा पछतावा होता है। कोई उसने छोटा मोटा कोई जुर्म किया है, कोई गलती उससे होगी, उसको लगता है शायद उसकी मुझे सजा मिल रही है, उसकी मुझे सजा मिल रही है। इससे भी बढ़ के उसके अंदर जो एक बहुत बहुत पेनफुल सिचुएशन होती है, वो होपलेसनेस होती है, हेल्पलेस होती है, नाउमीदी खा जाती है, नाउमीदी खा जाती है। उसको लगता है शायद मेरे हालात हमेशा ऐसे रहेंगे, मैं रहेंगे, बीमार हाँ। रहूंगा, मैं कभी ठीक ही नहीं होऊंगा। उसके साथ साथ वो इन चीजों से तो बेचारा लड़ रहा होता है, फाइट कर रहा होता है, जैसे भी कर रहा होता है, जो भी उसके बेचारे की हाँ। कोशिश से बगैर। लेकिन जो फैमिली मेंबर्स है, जो उसके फ्रेंड्स हैं, वो चाहते ना चाहते हुए, क्योंकि हमारे यहाँ साइको एजुकेशन इन चीज़ों की नहीं है, अवेयरनेस नहीं है, उनकी तरफ से जो क्रिटिकल कमेंट्स हैं जिस पे आपने बात की है ना, वो बंदे को खा जाते हैं। हाँ। उसको अपनी बीमारी भूल जाती है, उसको लोगों के जो जजमेंटल रिमार्क्स आ रहे होते हैं, जो उसको मार्जिनलाइज करते हैं, डिस्क्रिमिनेट कर देते हैं, वो उसको लगता है कि पता नहीं मेरी तो प्रॉब्लम्स को कोई अंडरस्टैंड ही नहीं कर रहा। बिल्कुल, इसमें मजीद बात करें, नाज़रीन अभी हमने जाना है ब्रेक पे, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाजरीन, और इसके साथ ही धरेजा साहब से हम बात कर रहे थे मरकजी और सूबाई बजट के हवाले से कि इस टाइम हम अपने यहाँ पर जनूबी पंजाब की बात करते हैं कि उसको कितना हिस्सा मिला। जी जी मैं प्यार करना हम कि इन्ना पिछले दौरे दे विच जिवें शहबाज शरीफ साहबान उन्हें आख्या कि असां 35% बजट जरा है वो जनूबी पंजाब आखिंदे असां ताईं लफ्ज़ को तस्लीम नहीं करेंदे। असाडे वसेब वास्ते उन्हें मुख्तस किया कि 35% बजट वसेब वास्ते हो से और इनकी अलग बुक बढ़ा दी गई है और एक कोई हाथ ना ले से सिर्फ उते ही खर्च थी से। इवें ही मुलाजमतें का भी उन्हें कोटा मुकर्रर किया और सिविल सैकटरीट वास्ते उन्हें रूल्स ऑफ बिजनेस तैयार किए जिंदी असैम्बली तो मंजूरी की गई, काबीना ने उनकी मंजूरी दी और आख्या कि भाई ये जेरे भी वसेब के मसैल हो सन ये इतों का सैकटरीट वो हल करे सी। लेकिन तुसा देखो कि अमली तौर पर वो न सिर्फ वो बजट नहीं रखा गया, ई बजट दे विच पिछला भी जरा बजट होंदा ही वो अलामती तौर पर होंदा ही, वो मुख्तस कर लेंदे हन, वो खर्च न थींदा ही, वो बैक थी वेंदा ही। हुण वो अलामत भी खत्म कर दी गई है। एक सरायकी अखाण है कि दोली दा मौका आथिया उल्टा गिधो ने खेस चा। ई अखाण दे पिछू कहानी है कि शादी है ते वो दोली आया, वो बेचारे को मौका भी ना मिला ते वो जरा खेस नाल चाती वधाई ओही चोरी थी गया। वो वल झोलिया चाहते बद दुई देना ही जब ये शादी थी ना थी हा ते एक घोड़ जमदा ना जावे हा ते साकू ई सैकटरेट दा भाई तुसें क्या किया हुए कि अख्तियारात क्या बने ये गाल को असां तो यह कही कि ये जरा सैकटरेट है सिविल सैकटरेट ये सूबाई सैकटरेट बढ़से ये सूबे की बुनियाद पर बढ़से और असारी गाल अगू ते टुरदी पी है और बगैर मकसद है कि जरा ना वजह दे उनको बैग किया गया, उनको ख़त्म किया गया और एक ई वसेब नाल धोखा किया गया। और ख़ास तौर पर हूँ डॉक्टर साहब गाल करें बयान कि एक बंदा जरा मायूस है तो वो मायूसी उनको खा वेंदी है और वो सोचेंदे कि क्या भी ये मायूसी मेरा मुकद्दर रहा से और उहा बंदे उहा चीज़ ही उनको पागल कर रही है। शाह अब्दुल लतीफ बिटई से फरमाए भुख बुछड़ो टोल दाना नादाना करे कि भाई भुख गुरबत तंग दस्ती परेशानी वो शय है कि जरी सियाणे को भी गाला कर लेंदी है, पागल कर लेंदी है। तो ई वसेब नाल ई वसेब दा हर बंदा वो जहनीत दे विच मुबतला है। रोजी कहनी रोजगार कहनी एक एक घर दे विच 5-5 बंदे बेरोजगार खड़े बाल तंग और रोजगार वास्ते बाहर वेंदन, बलोचिस्तान वेंदन, उतां पंजाब दे नां ते कतल थी वेंदन। और इवें ही तुसां देखो तुसां मुल्क दे कई शहर चले वञो वो इथों दे ही लोग मिल सन। हालांकि भाई तुसां इत्थां इंडस्ट्री लो, पूरी दुनिया का असूल है कि जिथां अफरादी कुवत ज़्यादा होवे, खाम माल ज़्यादा होवे तुसां उत्थां इंडस्ट्री लो। साडे बाल रोल गए, साडे नस्लां रोल गए, सरकारी जॉब तुसां नहीं देंदे और इत्थां इंडस्ट्री नहीं लावन दिते ही बजट दे विच भी इंडस्ट्री वास्ते कुछ नहीं रखा गया। हालांकि गिलानी साहब आख्या कि असां जलालपुर पीरवाला दे नाल एक टैक्स फ्री इंडस्ट्रियल जोन मंजूर करे, उनके वास्ते कोई पैसा नहीं रखा गया। इवें कोई मोटरवेज वास्ते पैसा नहीं रखा गया, कोई नवी यूनिवर्सिटी नहीं दी गई और वो एक
ਸਟਰਕਚਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਤਰੱਕੀ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਲਾਹੌਰ ਵਾਸਤੇ ਸਭ ਕੁਝ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਲਾਹੌਰ को इतना बढ़ा दिता गया देखो जितना शहर को वधे सो नवे इदारे बड़े सो हुण उथा मैट्रो है उथा ऑरेंज है हुण नवी जरा ना अंडरग्राउंड ट्रेन का मनसूबा है जरा के 600 अरब रुपए का भाई वो कितों पूरा थी से हुण असां ऑरेंज की सबसिडी नहीं दे सकते वल जितना वधे सो वेंदे थीवना तो सारे टैक्सां तो पूरा है वो किवें थी सी तो ये एक इतनी बड़ी वांझ है एक कितना बड़ा इम्तियाजी सलूक है एक कितनी बड़ी ना इंसाफी है जिहदे नाल मुल्क नहीं चल सकता तो ये वास्ते ज़रूरी है कि जरा सैकटरेट है उनको बहाल करें और गाल को अगू ते वधावें कि सूबे वाले पासे हुण गिलानी साहब या पीपल्स पार्टी के लोग क्यों चुप थी गए भी तुसां तां उहदे गहन की दिन हुण वसेबता को भुल गए हुण तुसां गाल करें तो ढिली करें दो भाई तकड़ी गाल करो कल तो आखें आवे कि चूंकि नून लीग अगर लत न मरेंदी असां तो सूबा बढ़ा दिता ही असां सैनेट चो बिल पास करा दिता ही हुण तो नून लीग ते तुसां हिक वे हुण तुसां बढ़ाओ हुण बिल को जरा सैनेट तो बिल मंजूर से आया बिल का मतलब यह है कि आईन तरमीम थी गई सराइकी सूबे को एक आईनी तहफ़ुज़ हासिल थी गई हूँ गाल को अगू ते वधाओ लेकिन वो भी नहीं वधाया वेंदा पिया और कदम कदम ते ई वसेब नाल वांझ थींदी पई और ज्यादती थींदी पई ई वसेब दे लोगें पाकिस्तान नाल मोहब्बत की है पाकिस्तान को अपनी धरती दी है अपना खिता दी है अपनी सरजमीन दी है और असा मुल्क दितन जिवें रियासत बहावलपुर है तो इतने वसाइल दितन कि तनख्वाह चलावन वास्ते भी पैसे के नान वो पहली तनख्वाह मशरकी पाकिस्तान मगरबी पाकिस्तान दी बहावलपुर रियासत के पैसे नाल चलेगी मने के हिसाब से सोना दिते हीरे दिते जवाहरात दिते और इतने खरबा के वसाइल दिते जै एक टक्का नहीं दिता वो ठेकेदार बढ़ गए और जिन्हें सब कुछ दिते वो हुण दूजे दर्जे के शहरी और उन्हें को मशकूक पाकिस्तानी आख्या वेंदे बई ये जब तक ई तरह का निज़ाम असा एक अद्धा मुल्क दे चुके से वो भी तो वांझ दे वजह तो गए हुण कम से कम हूँ को ही रहना नसीहत हासिल कर दी वजे ये वसेब के लोगों को हक दिता वजे शनाख्त दी वजे उन्होंने ज़बान को तस्लीम किया वजे उन्होंने वजूद को तस्लीम किया वजे ये वसेब के लोगों पाकिस्तान नाल मोहब्बत की है और कोई अलग मुल्क तो नहीं मंगया सूबा ही मंगे ना बलूचिस्तान सूबा कहना ही सूबा बढ़ गया अच्छा थी गए इवें तुसां नवे जिले बने दो नवे मकसद है कि रहना एक सहूलत वास्ते तो ई वसेब के लोगों का भी तो हक है कि हुण 62% आबादी का एक सूबा है 38% आबादी थे 3 सूबे यानी आईनी तौर पर भी तुसां देखो कि 38% आबादी ने सैनेट दे विच 75% हिस्सा कीता होया है और 62% आबादी को 25% हिस्सा हासिल है भाई ये वफाक इतना आदम तवाज़ुन का शिकार है किवें थी सी लाहौर एक बैठा होया IG उनको मकसद है कि जरा ना कच्चा ही नहीं कंट्रोल थींदा तो भाई तुसां मकसद है जरा नवा सूबा बढ़ाओ असां तां कहंदे उथा पोठवार को भी सूबा बढ़ाओ उन्हें भी अपने एक अलग तहजीब है सकाफत है क्या फ़र्क पौंदे और सराकिस्तान को सूबा बढ़ाओ सराकिस्तान के लोगों का हक है और 50 साल की जदोजहद है और अज तक कई मकसद है कि जरा ना दुकान का शीशा नहीं तोड़िया पुरमन जदोजहद अच्छा यूसुफ रज़ा गिलानी साहब दे नाल काफ़ी ज़ाहिरी गाल है हमेशा सारी गाल भी थों स्टार्ट थींदी है कि उन्होंने ही ये चीज़ ते आवाज़ उठाई है हुण ही हवाले नाल तुसां उन्हां दी खामोशी देते हो या उन्हां नाल कोई गाल बात तड़ी चलदी पई है क्या आखना चाहते हैं हवाले नाल जी असां उन्हां को हुणी कराई है ऑल पार्टीज़ सूबा सराकिस्तान कॉन्फ्रेंस ते उन्हां को सॾिया है वल वो नहीं आ सके वत मकसद है कि अफसोस है कि उन्हें कोई बेटा भी नहीं आया हुण अज वड्डा इश्तिहार छपया होया है कि जनाब 192 मुल्क दे विच एक मुनफरिद एजाज़ गिलानी खानदान को हासिल है कि 3 पुत्र MN हैं एक पुत्र MNA है और खुद वो चेयरमैन सैनेट है ठीक है एजाज़ तो हासिल हो सी लेकिन हुण 4 हल्के दे लोग उन्हें दे मसले कौन हल करे से भी तुसां कि वेले लाहौर होंदे वे तुसां इस्लामाबाद होंदे वे वल ये है कि हुण तुहाडे ही फर्ज बढ़दे कि तुसां जरा ना ये इशू को अगू ते करो और कम से कम तुसां मकसद है कि स्टेक होल्डर्स को सॾो उन्हें को पुछो उन्हें दा डुख क्या है उन्हें दा मसला क्या है सूबा आखिर मकसद रुकावट क्या है क्यों नहीं बढ़ाया वेंदा
तो सर सूबा का क्या मकसद है कि जरा सेक्रेट है उनको भी खत्म सकते ਤਾਂ ਅਸਾਂ ਇਹੋ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਭਈ ਇਹ ਵਸੇਬ ਦੇ ਲੋगों को कंसीडर करो ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਬੰਗਾਲੀਆਂ ਵਾਲਾ सलूक ना करो और ਉਹਨਾਂ ਦੀ तहजीब को सकाफत को ज़बान को अदब को हर शय को तस्लीम करो ताकि इत्थों दे लोग भी आखन तू भी पाकिस्तान है मैं भी पाकिस्तान हूँ या तेरा पाकिस्तान है या मेरा पाकिस्तान है लेकिन ये क्या कि भाई दुख झीले भी पाकता कवे अंडे खाएं तुसां देखो कड़े को किवें बर्बाद किया गया कि सारी धरती दे खेत जाए राधन उनके घर का अनाज करे गया तो डॉक्टर साहब वाली गाल आवे से डॉक्टर साहब एक असां को ये भी तुसां को पूछना है कि एक तो जहनी बीमारी होंदी है तो उन्हें बीमारियां दसे अलामात भी दसे इलाज भी दसे भी रेस्ट करो आराम करो सारी गाल बात एक जी जहनी पसमानदगी है जिमें साडे वड्डे साडे गद्दी नशीन हैं साडे जगीरदार हैं तुमनदार हैं सारे ये जरी जहनी पसमानदगी का शिकार है इनका इलाज क्या है जहनी पसमानदगी सही है हाँ ये डॉक्टर साहब अब आपका जवाब दे अच्छा क्योंकि ये जाहिर सी बात है वैसे मैं भी कहती हूँ कि ये भी दिमागी मरीज ही है वो ये तो बहुत बड़ा मर्ज है अच्छा जी इसके साथ ही जिस तरह से हम मजीद भी धरेजा साहब से जानेंगे हम जिस तरह से बात कर रहे थे मेंटल हेल्थ के हवाले से वहीं पर हम ये भी बात करेंगे अच्छा हम लोग समटाइम होता है कि एग्रेशन भी एक इंसान का जाहिर सी बात है ये भी बड़ी एक बीमारी में ही शामिल हो जाता है कि बहुत ज़्यादा गुस्सा आना अच्छा उसमें भी आप समझते हैं कि सेम जो है वो सिम्टम्स होते हैं अगर आप डिप्रेशन में हैं या एंजाइटी का शिकार हैं एग्रेशन में और उसको डिप्रेशन में नहीं मैडम इसमें फ़र्क होता है एग्रेशन वो देखना पड़ता है कि किस पार्टिकुलर सिचुएशन में आया है उसके पीछे अंडरलाइंग फैक्टर्स क्या हैं इन्वायरमेंट का कितना रोल है कम्युनिटी का कितना रोल है फैमिली मेम्बर्स का कितना रोल है और उस इंडिविजुअल का अपना टेम्परामेंट किस तरह का है ये अलग एंटिटी भी हो सकती है और जो हमारी साइकेट्रिक प्रेजेंटेशन है जिसमें बाज़ वक़्त एजिटेटेड डिप्रेशन है बाज़ वक़्त मेनिया वाली प्रेजेंटेशन होती है बाइपोलर अफेक्टिव डिसऑर्डर जिसके अंदर दो पोल्स होते हैं कि बाज़ वक़्त इंसान डिप्रेशन वाली फेज में होता है जैसे मैंने पहले बताया और बाज़ वक़्त ये होता है कि वो अपने आप को सुपर नेचुरल चीज़ समझने लग जाता है और ग्रैंडियोस वो समझता है कि मेरे पास पावर भी ज़्यादा है मेरे पास अथॉरिटी भी ज़्यादा है मैं ये भी कर सकता हूँ वो भी कर सकता हूँ तो उस सिचुएशन में भी एग्रेशन आता है और इसके साथ साथ जो स्किज़ोफ्रेनिया वाला है उसके अंदर भी आता है लेकिन एक चीज़ मैं पब्लिक अवेयरनेस के लिए बताऊं कि हर एग्रेसिव पेशेंट वायलेंट नहीं होता हर एग्रेसिव पेशेंट डेंजरस नहीं होता हमारे यहाँ स्टिग्मा ये भी है कि हम कहते हैं ये जो एक अजीब सी टर्म यूज़ होती है कि ये पागल हैं ये किसी वक्त भी अपना एग्रेशन शो कर सकते हैं हमें ऐसी टर्मिनोलॉजी से ऐसी चीज़ों से इज्तनाब करना होगा अगर हमने इन चीज़ों को रियलाइज़ करवाना है अंडरस्टैंड करवाना है कि हम सोचें हमारे जो बिहेवियर है वो किस तरह का है हमारे जो वर्ड्स की सिलेक्शन है वो किस तरह की है अगर हम थोड़ा सा इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से भी बात करें तो हम जो बाकी चीज़ें हैं नमाज है कुरान है इन चीज़ों के बारे में तो ज़रा ज़्यादा फोकस करते हैं लेकिन हमारे जो बिहेवियरल एस्पेक्ट्स है हमारे इस्लाम का जो कि एक बहुत बड़ा अल्लाह ताला की तरफ से ब्लेसिंग भी है अच्छा इस पर डिटेल से बात करते हैं नाज़रीन अभी हमने जाना है ब्रेक पे हमारे साथ रहिएगा वेलकम बैक नाज़रीन अच्छा जी हम बात कर रहे थे मेंटल हेल्थ के हवाले से जी वहीं से कंटिन्यू करते हैं देखें इश्यूज़ बहुत ज़्यादा हैं जब तक हम इन चीज़ों को अंडरस्टैंड नहीं करेंगे कि हमारे इश्यूज़ हैं क्या कहाँ पे प्रॉब्लम्स लाई करते हैं तो इन चीज़ों को हम प्रॉपरली एड्रेस नहीं कर पाएंगे कुछ चीज़ें होती हैं जो इंडिविजुअल लेवल पे की जा सकती हैं कुछ चीज़ें होती हैं जो कम्युनिटी के लेवल पे की जा सकती हैं कुछ हैं जो मीडिया पर्सन्स कर सकते हैं कुछ हैं जो हमारे जो रिलीजियस ट्रेडिशनल फेथ हीलर्स हैं वो कर सकते हैं और कुछ चीज़ें हैं हमारी जो गवर्नमेंट सेक्टर्स ने करनी है और कुछ चीज़ें जो हम अपने बिहाव पे मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल कर सकते हैं जब तक ये चीज़ें प्रॉपरली इनकॉर्पोरेट नहीं होगी एक पेज पे नहीं आएंगे तो ये हमारी जो मेंटल हेल्थ है वो नेगलेक्ट होती रहेगी इसके लिए सबसे पहले तो ये है कि गवर्नमेंट के लेवल पे कोई पॉलिसीज़ बननी चाहिए कोई बजट एलोकेशन होना चाहिए अनफॉर्चुनेटली जो हेल्थ से रिलेटेड बजट है मेरा ख्याल है वो 540 बिलियन है इस दफ़ा का और ये भी शायद मेरे ख्याल में पिछले 1-2 बजट से निस्बतन ज़्यादा है और इसमें जो मेंटल हेल्थ के लिए बजट है वो यूँ समझे ना होने के बराबर है अगर मैं एक फिगर की बात करूं 2020 में एक सर्वे हुआ था
تو اس میں پتہ چلا تھا کہ 1 لاکھ انڈیویجول کے لیے ایک سائیکیٹرسٹ ہے. ہمارے پرابلمس یہ آتا ہے کہ ہماری سوسائٹی کے لیول پہ ان چیزوں کی پراپرلی اویئرنیس نہیں ہے, نالج نہیں ہے, اور اس کے ساتھ ساتھ ہمارا جو ہیلتھ کیئر سسٹم ہے اس کے اندر بھی پراپر ریفرل نہیں ہے کہ کسی کو پتہ چلے کہ نہیں اس کا یہ والا ایشو ہے, یہ ہم سے ٹیکل نہیں ہو پا رہا. تو ہم اس کو ڈاکٹر صاحب نہیں سمجھتے کہ اس طرح کے سیشنز ہونے چاہیے, چاہے آپ ہماری جب اب مینٹل ہیلتھ, کیونکہ ہماری ہم یوں سمجھیں بچوں میں بھی ہے, خواتین میں بھی ہے, مردوں میں بھی ہے, آپ بڑھاپے میں بھی جائیں تو وہاں پہ ان کو بھی اس طرح کے ایشوز جو ہیں وہ بہت زیادہ آ جاتے ہیں. مطلب اس طرح کے سیشنز ہونے چاہیے جن میں اویئرنیس جو ہے وہ دینی چاہیے. اچھا ہم چاہے کھیلوں میں بھی جائیں, وہاں پر بھی ہم دیکھتے ہیں کھلاڑیوں میں بھی بہت زیادہ اس طرح کے مسائل دیکھنے میں آتے ہیں. تو یہ چیزیں اس بارے میں آپ کی کیا رائے ہے؟ بالکل ہونی چاہیے. ہمارا جو میڈیا کا اور ہمارے جو ہیلتھ پروفیشنل ہیں ان کا پازیٹیو جو یوزیج ہے وہ یہی ہو سکتا ہے کہ ہم لوگوں کو میکسیمم ان چیزوں کے بارے میں اویئر کریں. ایسی ہم پبلک فگرز کو بلائیں جو زندگی میں کسی نہ کسی طرح کی مینٹل یا ایموشنل ڈسٹربنسز کا شکار ہوئے ہیں, اور وہ آ کے آپ کو بتائیں. اس سے یہ ہوتا ہے کہ جو چینج ہوتی ہے نا, جیسے کہتے ہیں ٹاپ سے آتی ہوتی ہے. اگر ہم کوئی پازیٹیو اسپیکٹ دکھائیں گے, اس کو میکسیمم لوگ دیکھیں گے تو ڈیفینیٹلی اس کا امپریشن اور آئے گا. بٹ اگر ہم نیگیٹو چیزوں کو وہ کریں گے, پروپوگیٹ کریں گے, تو اس کا امپیکٹ بڑا گندا ہے. اور ہمارے ہاں معاشرے میں نیگیٹیوٹی زیادہ تیزی سے پھیلتی ہے, بہت زیادہ آتی ہے, ہمیں پازیٹیوٹی اتنی نہیں ہے. بالکل آپ صحیح کہتی ہیں. ہم تو پہلے سوچتے یہ ہیں کہ اچھا اس نے یہ والا پازیٹیو کام کیا, اس کے پیچھے کہ اس کو کوئی انٹینشن ہوگا. ہاں, اپریشیٹ نہیں کرتے, اپریشیٹ نہیں کرنا, اپریشیٹ نہیں, کرٹیسائز کرنا. ہاں. اچھا اس میں بھی کوئی نہ کوئی ہم اگر کوئی اچھا کام ہو رہا ہے تو اس میں بھی ہم نے کچھ نہ کچھ برا نکال لینا ہے. بالکل. اچھا پھر یا جو کام کر رہا ہے اس کو ہی برا کہہ دینا ہے. تو ہمارے ہاں یہ چیزیں تنقید جو ہے وہ بہت زیادہ ہے. اچھا پھر وہ تنقید برائے اصلاح بھی نہیں ہے نا. ہاں صحیح کہتی ہیں کہ اچھا جی آپ کسی کی اصلاح کر رہے ہیں تو اس پہ آپ تنقید کریں. وہ تنقید ایسی ہوتی ہے کہ آپ کسی کی جو ہے عزت نفس کو مجروح کر رہے ہیں. مطلب ہمارے ہاں یہ چیزیں بہت زیادہ ہیں. اور پھر جس طرح سے ہمارے, آپ نے بڑی اچھی بات کی کہ ہمارے جتنے بھی یہاں پر چاہے حکمران ہیں, چاہے ہمارے جو ہے عالم ہیں, معلم ہیں, ان سب کو ایک اپنا بڑا بہترین رول پلے کرنا ہوگا. ایک ہی پلیٹ فارم پہ اس چیز کو لے کر چلنا ہوگا, تبھی ہم اپنے معاشرے میں بہتری لا سکتے ہیں. بالکل. اچھا جی, اس کے ساتھ ہی دھریجہ صاحب سے بھی جانیں گے. دھریجہ صاحب, اس ٹائم جس طریقے سے ہم 26 جون کو ہم نے یہ دیکھا کہ سرائکی صوبے کے لیے جو ہے خواجہ سرا بڑے آگے بڑھ چڑھ کر انہوں جو ہے وہ حصہ لے بھی رہے ہیں اور وہ باہر نکلے. اس حوالے سے آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ میڈم دیکھو کہ کچھ لوگ روزی سے خبر کے لیے کہ 26 جون کو جو ہے نا اگر ملتان پریس کلب کو گیلانی ہاؤس تک ریلی کریں گے صوبہ پاکستان لوگوں کو سارے وقت تو بد مرن کا مقام ہے. گال نہ کرے تو اسمبلی میں گال نہ کرے تو یا جڑے اسمبلی کو باہر ہیں وہ گال نہ کرے کیونکہ دوسرے علماء سے ہاں بالکل ہر سب کی خاطر سامان بول پتھر بھی بولتے ہیں تو سن بنا لیں. ایک بڑا قدم ہے. ایک تو یہ ہے کہ جڑے لوگ مقصد ہے کیا کیونکہ خواجہ سرا تو پہلے ایک آیا ہے نا اسٹیشن والا, پولیس اسٹیشن والا معاملہ ان کے بعد ایسا ڈیٹا کہ وہ سرائکی صوبے واسطے بھی والا گو نکل ہے. کہ وہ معاشرے دا برابر حصہ ہے جی میں مقصد ہے مرد ہے عورت ہے میں مقصد ہے خواجہ سرا ہے وہ بھی برابر دے بھائی والے ہیں اور انہوں کو بالکل آئین کے مطابق برابر حقوق حاصل ہونا چاہیے. اور خاص طور پہ انہوں ثابت کیسے اپنی سوچ کے ذریعے کہ بعض ویلے تو انہوں مردیں کو بھی بہتر ہیں جڑے اپنے وسیع کے بارے میں انسان واسطے نہیں سوچے, انسانی حقوق واسطے نہیں سوچے اور انسانی ترقی واسطے نہیں سوچے. اور انہوں کا قدم بہت چنگا قدم ہے اور اساں انہوں دے اخلاقی طور سے انہوں واسطے دعا گوئی بھی ہے سے انہوں دے نال ہے سے اور بھرپور اساں حمایت کریں دے سے. اور خاص طور سے این ویلے کہ یاد دہانی دے طور سے انہوں دا گیلانی ہاؤس تک ونجن بہتر بھی ہے کہ این ویلے جو حکومت ہے انہوں دے اتحادی حکومت اگر ایک منٹ واسطے بھی پیپلز پارٹی ایڈے اڈے تھی وے تو انہوں دی حکومت دھڑم تھی ویسے اور پیپلز پارٹی کو رول ادا کرنا چاہیے
ਇਹ ਵਸੇਬ ਵਾਸਤੇ, ਇਹ ਵਸੇਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਵਾਸਤੇ ਜਿਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਵਾਅਦਾ ਵੀ ਕੀਤੇ, ਬਲਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਾਸਤੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਾਇਕੀ ਸੂਬਾ ਪਾਕਿस्तान ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ है और इनका पंजाब को भी कोई नुकसान क्या नहीं। ठीक है, ਜਿਹੜੇ ਮਫਾਦਾਤੀ ਗਿਰੋਹ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਥੀ ਸਕਦੇ, लेकिन ਇਹ है कि ਇਹਦੇ ਵੱਡੇ ਹੁਜਮ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ पंजाब को लोग मकसद एक चंगा नहीं समझते या उनके खिलाफ नफरत का इजहार करें, गुस्से का इजहार करें। और दूजा ये है कि छोटे सूबे जरे के एहसास महरूमी का शिकार रहे हैं, नवाजन के जनाब कौमी असम्बली तो पंजाब असम्बली है कि भी उतना सारो ही उन्होंने मनापली है, तो उन्होंने भी जरा वो बेहतर थी, वैसे उन्होंने एहसास है महरूमी ख़त्म थी से, उन्होंने नफरत कम ख़त्म थी से और इतों के लोगों को फायदा थी से। जितने फवायद मकसद है कि वफाक को बैलेंस करने दे विच हैं और पाकिस्तान को जितना फायदा है उनका मकसद है कि जरा ना कोई लफ्ज़ें च असां बयान ही नहीं कर सकते। तो ही पाकिस्तान की खातिर ई वसेब के करोड़ों लोगों की खातिर कम अज़ कम रहम किया वजे। ई वसेब के लोगों पाकिस्तान के नाल तो मकसद है कि जरा ना इलाहाक किते, जिवें रियासत बहालपुर है पंजाब के नाल नहीं किया। तो एक जबरदस्ती रणजीत सिंह के दौर दे विच कब्जा किया गया ये खिते दे उत्ते और 200 साल तो वसाइल लुटे गए। अगर हुण मजीद देर की वैसे तो ये वसेब के लोग जरन वो अक्सर साकू पिछले हिसाब दियो, असाडे पिछले हक दियो, तो वो जरा फासला है वो वधदा वैसे, वो गैप वधदा वैसे। तो ही वास्ते बहुत जरूरी है कि भी हुण बिला ताखीर बहु कुछ मकसद है कि पंजाब ने हासिल करके दे। इवें है कि अंग्रेज ने 9 नवंबर 1901 को बहुत गलत फैसला किया वायसराय हिंद लॉर्ड कर्जन कि ई वसेब दे खिते ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਸੂਬਾ ਸਰਹੱਦ ਹੀ ਵਾਲੇ ਹੁਣ ਖੈਬਰ ਪਖਤੂਨਖਵਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਮੈਡਮ ਇੱਕ ਮਿਸਾਲ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੂਬਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਬਣਿਆ, ਨਹਿਰੂ ਨੇ ਬਣਾਇਆ ਔਰ ਜਸਟਿਸ ਫਯਾਜ਼ ਅਲੀ ਉਹਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਹਨ, ਉਹਦੇ ਜ਼ਿੰਮੇ ਇਹੋ ਕੰਮ ਲਾਤਾ ਗਿਆ कि भी ਜਿਹੜੇ अंग्रेज़ां अपनी ज़रूरत के तहत सूबाई हदबंदियां बनाएं, गलत बनाएं और कौमें को लोगों को तहजीबी तौर पर, सकाफती तौर पर, लिसानी तौर पर जरा वंड दिते, उन्होंने को बुला इकट्ठे करो। जरे 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 अगर एक सूबे के जिले बे पासे लगे खड़े तो उन्होंने पासे घेराओ। जेड़े मकसद है जिवें हुण ना हरियाणा वाले आख्या भी असां पंजाबी नहीं, उन्होंने को सूबा दे दिता। हिमाचल वाले आख्या भी असां पंजाबी नहीं, उन्हें दा सूबा अलग कर दिता, पंजाब अलग थी गया। जरा छोटा हिस्सा है उन्होंने को उन्हें 3 हिस्से बढ़ा दिते और जरा ये वड्डा है इन्हें बहालपुरी हड़प करके थे। तो कम अज़ कम हुण कुछ सोच विचार की गल करनी चाहिए, अकल की, समझ की, बसीरत की, सियासत की और जमहूरियत की गल करनी चाहिए, लोगों की गल को सुनना चाहिए। बिल्कुल, इहदे नाल ही पाकिस्तान मजबूत थी से। बिल्कुल, मजीद भी इनसे जानेंगे। नाज़रीन अभी हमने जाना ब्रेक पे, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन। अच्छा डॉक्टर साहब, आजकल जैसे सोशल मीडिया का दौर है, बहुत ज़्यादा हमने ये देखा कि दिखावा भी है, बहुत ज़्यादा लोगों की ना एक जहनी जो एक तौर पे कहें ना कि दिमाग को बहुत मुतासिर कर रहा है, क्योंकि जाहिर सी बात है लोग जब देखते हैं कि अच्छा इसके पास ये सब कुछ है, मेरे पास नहीं है, इससे भी लोग बड़े जो है वो अपने आप को मुतासिर हो रहे हैं और जहनी तौर पे चाहे ख़वातीन भी हैं। इस हवाले से क्या कहना चाहेंगे आप? देखें, हर चीज़ के पॉजिटिव और नेगेटिव एस्पेक्ट्स, प्रोज एंड कॉन्स होते हैं। आपने सही कहा कि इसकी वजह से एक जो रेस लगी हुई है कि हम जो कंपेयर करते हैं, जो हमारे ये कंपैरिजन भी बेसिकली हमारे बहुत सारे इमोशनल डिस्टर्बेंसेस की, साइकोलॉजिकल डिस्टर्बेंसेस की एक बहुत बड़ी वजह है। और उसके साथ साथ हम ऑब्सेशनल हद तक होते हैं कि हमने हर वक्त ये सोशल मीडिया यूज़ करना है, इवन किड्स से लेके बच्चे बूढ़े, किसी की कोई मतलब है इसमें पीछे नहीं है। और बेसिकली जैसे बाकी एडिक्शंस हैं, नशावर चीज़ें हैं, ये जो सोशल मीडिया है ये भी एक तरह का नशा ही है। इसके अंदर भी वही न्यूरोट्रांसमीटर जिसे डोपामीन का नाम दिया जाता है वो रिलीज होता है, जिसकी वजह से बंदे को रिवॉर्ड मिलता है। मुझे इतने लाइक्स मिल गए, मुझे ये चीज़ मिल गई, मुझे ये मिल गई, मेरे कितने फॉलोअर्स हैं, मेरे इस तरह की सारी चीज़। तो लेकिन इसके कुछ पॉजिटिव हैं, अगरचे वो निस्बतन कम है। वो ये है कि एक ऐसा बंदा जो इंट्रोवर्ट है, इंट्रोवर्ट से मुराद ये है कि जो लेस सोशलेबल है, लोगों से नहीं घुलता मिलता,
وہ یہاں پہ اپنے سے ریلیٹڈ کوئی انفارمیشن سیکھ کر سکتا ہے, کوئی ایسا سپورٹ گروپ جوائن کر سکتا ہے کہ اگر اس بندے کو کوئی پارٹیکولر پرابلم ہے تو آپ کو ہر طرح کی اس طرح کی چیزیں مل جاتی ہوتی ہیں. لیکن آپ نے صحیح کہا کہ اس کے پازیٹیو اسپیکٹس کم ہیں ایز کمپیئر ٹو کہ نیگیٹو. اور ہماری کمیونٹی میں تو پرابلم یہ ہے کہ ہمارا اسکرین ٹائم بہت زیادہ, ہم کھانا کھا رہے ہیں, ہم کوئی ایکٹیویٹی کر رہے ہیں تو ہم موبائل یوز کر رہے ہیں. بالکل ایسے ہی ہے. اس طور بھی ہم دیکھتے ہیں کہ مینٹل ہیلتھ ہماری جو ہے وہ بہت زیادہ ڈسٹرب ہو رہی ہے. اچھا, آپ کیا سمجھتے ہیں اس کے لیے کیا کرنا چاہیے؟ ہوتا ہے کچھ لوگ ہوتے ہیں جیسے اگر انزائٹی ہوگی ہے تو میڈیسنز کھانا شروع کر دیتے ہیں, اگر ڈپریشن میں ہیں تو کسی نے بھی ریکمینڈ کر دی یار مجھے یہ مسئلہ تھا تو میں نے یہ, آپ کو کہتا نا سیلف میڈیکیشن بھی لوگ کرنا شروع کر دیتے ہیں. اس حوالے سے آپ کیا کہنا چاہیں گے کہ کیا کرنا چاہیے اگر آپ کو کچھ اس طرح کے سمٹمز محسوس ہو رہے ہوں, ڈپریشن ہو, انزائٹی ہو یا پھر اس طرح؟ پہلے تو دیکھیں نا, ہمیں اس کی پراپرلی اسسمنٹ کروانی چاہیے. وہ ایک جو کوالیفائڈ سائیکیٹرسٹ ہے وہی کر سکتا ہے کہ اس کو پرابلم ہے کیا. کسی کو کوئی سچویشنل انگزائٹی آ رہی ہے, سچویشنل سیڈنس آ رہی ہے تو وہ ڈیفینیٹلی ڈپریشن یا انگزائٹی کی کیٹیگری میں آئے گی. پہلے اس کی پراپرلی اسسمنٹ ہونی چاہیے, پھر وہ سجیسٹ کرے گا کہ آپ کا جو پرابلم ہے کیا وہ لائف سٹائل میڈیفیکیشن سے بہتر ہوگا یا آپ کو اس سٹیج پہ کوئی میڈیکیشن کی ضرورت ہے. ٹھیک ہے نا, وہ پھر ڈیسائیڈ کرے گا فردر کیا کرنا ہے. وہ 1 ویک 2 ویکس ٹرائل دے گا کسی چیز کا. وہ کوئی کاؤنسلنگ ہو سکتی ہے, کوئی نان فارماکولوجیکل انٹرونشن باقی جیسے میں نے کہا ہے, کوئی ایکسرسائز ہو سکتی ہے, فزیکل ایکٹیویٹی ہو سکتی ہے, تو اس پہ کرے گا. اگر وہاں سے اس کو ریلیف نہیں مل رہا یا اس کی سیویرٹی زیادہ ہے, وہ سمجھتا ہے کہ نہیں یہ اس کا جو پرابلم ہے نا اس کو فوراً کسی نہ کسی ہیلپ کی ضرورت ہے, وہ دیکھے گا پھر اس میں کون سی میڈیسن دینی ہے, اور پھر میڈیسن بھی جب دینی ہے تو وہ ڈیسائیڈ کرے گا کتنے عرصے کے لیے دینی ہے. ہوتا یہ ہے کہ ایک دفعہ کسی نے کسی کو کنسلٹ کر لیا تو اس کے بعد وہ میڈیسن کھاتے رہے. بالخصوص جو بینزوڈازیپین ہے ہماری, جو سکون آور ادویات ہوتی ہیں, ان کے اندر ڈیپینڈنس کا ایلیمنٹ ہوتا ہے. پھر ان سے جب وہ کسی اور ڈاکٹر کے پاس کچھ عرصے بعد جاتے ہیں تو وہ کہتے ہیں ہمیں تو فلاں ڈاکٹر نے لے کے دی تھی, ہم تو کھا رہے ہیں. وہی جو آپ نے بتایا کہ سیلف میڈیکیشن, اس کا بھی ایک ٹائم پیریڈ ہوتا ہے کہ آپ نے یہ والی میڈیسن کتنے عرصے کے لیے کھانا, اور ان چیزوں کو پھر گریجولی اپنے ٹیپر آف کرنا ہوتا ہے, آہستہ آہستہ ان میڈیسن کو بند کرنا ہوتا ہے. اچھا, بہت سارے لوگ اس وجہ سے بھی ہچکچا رہے ہوتے ہیں نا کہ اچھا ہم ڈاکٹر کے پاس جائیں گے یا کسی تھراپی کے لیے جائیں گے تو لوگ کہیں گے یار یہ تو پاگل ہے. ایک یہ بڑا ہمارے ہاں یہ وہ جس طرح آپ نے بات کی کہ لوگ کیا کہیں گے, وہ یہ جو ہمارے اندر یہ تمام چیزیں ہیں نا وہ بھی ہمیں اس حوالے سے جو ہے وہ علاج کرنے سے روک دیتی ہیں. بالکل صحیح کہا ہے کہ میں نے جیسے کہا ہے نا, ایک ہوتا ہے پبلک سٹگما, ایک ہوتا ہے سیلف سٹگما, ایک ہوتا ہے اسٹرکچرل سٹگما. پبلک سٹگما یہی ہے کہ لوگ کیا کہیں گے ہمارے بارے میں, اور وہ ہوتے ہوتے سیلف سٹگما بن جاتا ہے. بندے کو لگتا ہے میں انکیپیبل ہوں, میں یہ کام کر نہیں سکتا, میرے اندر یہ کمی ہے, میرے اندر یہ کوتاہی ہے, میں کچھ نہیں کر سکتا. اور اسی طرح سے وہ جو اسٹرکچرل سٹگما ہے, وہ جو آپ کی گورنمنٹ پالیسیز ہیں کہ ہیلتھ کو کتنا بجٹ دینا ہے, مینٹل ہیلتھ پہ کتنا فوکس کرنا ہے. میں آپ کو پریکٹیکلی بتاؤں, ہمارے پاس لوگ آتے ہیں, ان کا پہلا کویشچن یہ ہوتا ہے آپ ہمارے کسی رشتہ دار کو جانتے ہیں, کسی کو آپ نے کوئی نام لے لیا, انہوں نے کوئی نام لے لیا, وہ کہتے ہیں آپ اس کو بتائیں گے تو نہیں. ان کو ڈر ہوتا ہے ہماری کنفیڈینشیلٹی وہ بھی. اور اس طرح کے جو سینسٹیو لوگ ہوتے ہیں وہ ہمارے پاس رات کے اندھیرے میں آتے ہیں. وہ اکثر یہ بھی کہتے ہیں کہ ہمیں چھوٹی سی کسی سلپ پہ لے کے دے دیں, اپنے پرسکرپشن پیڈ پہ میڈیسن نہ لکھیں. اپنی جو آپ کی فائل ہے پرسکرپشن کے ساتھ, ویسے بڑے پرابلمس فیس کرنے پڑتے ہوں گے ڈاکٹر صاحب, یہ تو ظاہر سی بات ہے ہمارے ہاں یہ بھی تو چیزیں کرنے پڑتے ہیں. ہاں, مجھے خود یاد پڑتا ہے جب میں نے اس فیلڈ کو سلیکٹ کرنے کی مطلب کوشش کی تھی کہ میں نے سائیکیٹری میں جانا ہے, تو میری فیملی ممبرس نے کہا تھا یہ تو پاگلوں والے ڈاکٹر ہوتے ہیں, یہ تو ان کی تو کوئی ارننگ نہیں ہوتی, ان کو کوئی ڈاکٹر نہیں مانتا, آپ کس فیلڈ میں جا رہے ہیں. لیکن میں آپ کو ایک بات بتا دوں, جو سائیکیٹرسٹ ہوتے ہیں وہ لیس پیڈ ہوتے ہیں, شاید ان کی اتنا انکم نہ ہو, بٹ دے آر انٹرنلی سیٹسفائڈ. اچھا, یہ بھی بڑی میں سمجھتی ہوں آپ کا ایک یہ ہوتا ہے کہ آپ لوگوں کو سن رہے ہوتے ہیں, آپ ان کو سمجھ رہے ہوتے ہیں جو لوگ کسی اور سے نہیں کہنا چاہ رہے ہوتے, تو اس طرح سے آپ ان کے لیے ہیلپ فل ہو رہے ہوتے ہیں, آپ کے اپنے پرابلمس شیئر کر رہے ہوتے ہیں. مطلب رویے بھی آپ کو متاثر تو کرتے ہوں, سم ٹائم اس طرح پیشنٹ جو ہیں وہ ایروگینٹ ہو جاتے ہوں یا کوئی اس طریقے سے نقصان پہنچانے کی کوشش کرتے ہوں. وہ ہمیں کچھ نہ کچھ اپنی ایکسپیرینس سے اسیسمنٹ ہو جاتی ہوتی ہے کہ یہ پیشنٹ کتنا وائلنٹ ہے. صحیح. اگر تو کوئی وائلنٹ ہوتا ہے تو اس کو تھوڑا سا ہم ایسی جگہ پہ ایگزامن کرتے ہیں جہاں پہ ہمارے لیے کچھ اسپیس ہو, کہ ایسی چیزیں نہ ہوں کہ وہ ایز اے ویپن یوز کر سکے. تو اس کا ایک پروٹوکول ہوتا ہے. جو لیس وائلنٹ ہوتا ہے, جو روٹین والا ہوتا ہے, تو اس کے لیے ہم تھوڑا سا
हम क्योंकि बेसिकली इस तरह के पेशेंट्स के अंदर ना कन्फ्रंट नहीं करना होता। हम उनके साथ जब कन्फ्रंट करते हैं, उनकी बात को निगेट करते हैं, तो उनका जो एग्रेशन है, जो सिचुएशनल एग्रेशन होता है मोस्टली वो बढ़ जाता होता है। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया, बहुत अच्छा लगा आप हमारे शो का हिस्सा बने, और इसके साथ ही धीरज साहब तारा भी बहुत शुक्रिया दोस्तों सरनार रहे। और इसके साथ ही नाज़रीन आज का शो यहीं पे खत्म हुआ। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। इंशाल्लाह जिंदगी ने साथ दिया तो सुबह से फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।